Sure. So we are hereby starting the session, and students, to ensure that they need to be very attentive during the afternoon, one and all. I would like to start the session with this beautiful quote that the only person you are destined to become is the person you decide to be. A very cheerful good afternoon and a very warm welcome to esteemed guest of the day, Mr. Pankaj Munjalji, Director, Training and Development, RVIT. Respected Dr. Ajay Kumar sir, he would be joining us very soon, Director GLBIMR, faculty colleagues and dear students. Today we all have gathered to attend a very special and gripping session on universal human values. But yes, before we begin with, let's visualize the presence of goddess of knowledge and seek the choicest blessings of Mother Saraswati. कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपदाम्बरा या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती About industry and other competitor. Thank you, everyone. May the divine grace of God just be with us and today and always. So today's webinar on universal human values aims to provide all the students and faculty members, and specifically the students of this new generation, the clarity of universal value-based human goals and management acumen, which in turn can add tremendous value not only to their own lives but to the fellow human beings, besides working towards rightly utilizing and managing the resources in nature. And for this, we have amongst us multi-talented personality, vigorous and full of life, Mr. Pankaj Munjalji. It's an honor to introduce you, sir. Pankaj Munjalji is an alumnus of Institution of Engineers and Delhi College of Engineering, holding a master's degree in electrical engineering with natural flair for facilitating and coaching. To begin his career, he had worked with MNCs in different engineering domains for nearly 10 years and changed his career trajectory to academics in 2001. Since then, he had been associated with affiliated engineering institutes of GTSIP University, Dr. Abdul Kalam Technical University, looking after teaching and training functions. His last regular assignment was with RV Institute of Technology and Engineering Institute in Bijnor, affiliated to UP Technical University as director. In 2017, he took voluntary retirement from regular jobs to be associated with training and development functions in freelancing mode so that he could share value-based content with maximum educators and students through interactive workshops. He is empaneled with reputed autonomous organizations such as CBSE, COE, Center of Excellence, Delhi, Punjab, Haryana, Uttarakhand, for capacity building workshops for educators on a value education ethics and integrity, child psychology, life skills, decision making, critical thinking, harmonizing relationships, stress management, happy classrooms, gender sensitivity. So far, he has conducted over 225 offline workshops and around 100 online sessions. With these words, a very warm welcome, sir, once again. Now, I would request our guest to please start the session. Please, sir. Thank you so much, Arpana ji. Thank you, Kilesh ji. Thank you, everybody present over here. Let me share my screen with you. I'll be using audio PPT mode. Just give me a second. Just let me know if you can see my screen clearly. It's visible. Yeah, it's visible. Yeah, perfect.
Yeah, it is clear, I guess, right? And I'm Yes. audible to you too. Yes, yes. So thank you so much once again for this opportunity to share the thoughts based on value education. So welcome to this universal human values. So before I begin, let me ask you, everybody being who's ever present over here, what do you think what I'm going to talk about so far as universal human values is concerned? अभी अर्पणा जी ने का बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होगा. आपको लगता है ह्यूमन वैल्यूज व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन वैल्यूज वुड इट बी इंटरेस्टिंग? मैं बच्चों से भी पूछ रहा हूँ. चैट बॉक्स मेरे सामने है पैरेलल मशीन पे, तो मैं चैट बॉक्स में बी वेरी जनरस, यू नो, व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. डू यू थिंक दैट इट इज ऑफ इट कैन बी ऑफ सम वैल्यू, इट कैन बी इंटरेस्टिंग? ह्यूमन वैल्यूज कभी इंटरेस्टिंग हो सकती हैं? क्वेश्चन ये है. Students get right in chat box, everyone. And I would request all of you to keep your mics in muted mode. And if possible, we'll see अगर कैमरास में भी कोई इशू आता है तो हम कैमरास को भी ऑफ कर देंगे. ठीक है? If अगर इसमें जूम में कोई इशू ना हो तो हम एक दूसरे से will be talking to each other through the chat box to begin with, and later on I'll be inviting through audio participation also. बताएं. Yes. What is your thought on universal human values? Human values आपको क्या लगता है? What it should comprise? What it should talk about? क्या बात होगी universal human values में? If you have slight idea or any guess, आपको क्या लगता है? बताइए. Truth, honesty, right? What else? ये तो हम सबको पता है. Let's be truthful. Let's be honest. Now the question comes. सब कुछ पता है पर फिर भी जीने में नहीं है. Peace. Everybody wants peace. Everyone wants loyalty, right? Responsibility to help grow, development, real values. Okay, integrity. Okay. आपको नहीं लगता ये सब किताबी बातें हैं? बताइए. Let's be very honest. Let's be very truthful, right? I'm a friend of yours. ठीक है, मैं एक एक्सप्लोरर हूँ और कुछ एक्सप्लोर किया मैंने इस पूरे पिछले 5 साल 6 साल के दौरान. तो कुछ एक्सप्लोर किया, कुछ समझा हूँ. दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. आई एम गोइंग टू पुट इन फ्रंट ऑफ यू इन द फॉर्म ऑफ प्रपोजल्स, राइट? So I'm just a facilitator. Don't take me to be your teacher or trainer. I just want you to be connect with you all, right? So that is why take me to be your friend, your facilitator, your colleague, right? So let us be very honest while we are here for next till 4:30 or whatever is the time, right? Sacrifice, manners, etiquettes, everything, but don't even try to implement. देखिए निखिल जी ने कितनी बढ़िया बात बोली है. We know everything, but do not try to implement. Now the question comes, why do we not implement? इसका क्या मतलब हुआ? मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अपने ऑनेस्ट क्वेश्चंस यहाँ पे चैट बॉक्स में ड्रॉप करें, बिल्कुल ऑनेस्ट. ठीक है? पॉइंट क्या आता है कि हम इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं? सबको पता है सब चीजें, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हमारा नहीं है, बहुत वीक है. ठीक है, चलिए. और दोस्तों अब देखो तो हमारे पास है, लेकिन सोचो कितनी दूर है. अच्छा, वेरी नाइस. लैक ऑफ इंटेंशन. अच्छा, लैक ऑफ इंटेंशन भी एक मुद्दा आ रहा है. शशि जी ने लिखा है, व्हेन सिचुएशन कम्स एवरी बुकिश नॉलेज गोज इनटू वेस्ट. वेरी नाइस. आज हम इसी को एक्सप्लोर करने वाले हैं. वैल्यूज चेंज ओवर टाइम. एक और बात निकल के आ रही है कि वैल्यूज चेंज होती हैं. ठीक है, हो सकता है वैल्यूज ना चेंज होती हैं, कुछ और चेंज होता हो. लेट अस फाइंड इट आउट. It's because of lack of intention, self efficacy. ठीक है, I got an idea. Actually I wanted to have an idea कि आपकी थॉट क्या है. ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं. टाइम थोड़ा सा कम है, 2 घंटे बहुत टच एंड गो है एक्चुअली. बट एक मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एवरीबडी इज नो एटलीस्ट ग्रेजुएट ओवर हेयर. तो मुझे लगता है बहुत आराम से ये बात मैं ये रख पाऊंगा और आप समझ भी पाएंगे इस बात को. ठीक है. See, what we are going to talk about is what is valuable for human beings. सबसे पहले तो universal human values क्या बात करता है कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है. What is valuable for human beings? आपको क्या लगता है कि what is valuable for human beings? बताइए. Write your thoughts. Write your heart.
whatever comes from within, just mention it in the chat box. आपको क्या लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वट एवर यू फील लाइक, किसी भी सेंस में आपको क्या लगता है आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, एज ए ह्यूमन, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, राइट? बीइंग हैप्पी ऑलवेज, ओके. During the type of competition, people want to stay ahead of the game. Oh, wonderful. Peace of mind, to be happy, acceptance, hard work. Great. आगे चलते हैं. वैल्यूबल क्या है, इसके लिए हमें एक बात को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज ह्यूमंस एंड हेंस योर्स, राइट? वी आर ऑल ह्यूमंस ओवर हियर. ह्यूमन की सबसे मूल अभिलाषा क्या है? हो सकता है वैल्यूबल और बेसिक एस्पिरेशन आपस में इंटरकनेक्टेड हो, ठीक है? आपको क्या लगता है सबसे मूल अभिलाषा? हो सकता है वैल्यूबल जिसको हमने मान रखा हो हमारी मोस्ट बेसिक एस्पिरेशंस भी हो. तीसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं. व्हाट इज ह्यूमंस एंड हेंस योर्स रोल इन दिस यूनिवर्स? आपने देखा नीचे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, नीचे एक ह्यूमन खड़ा हुआ है, और कहाँ खड़ा है? पूरे एग्जिस्टेंस में. ये पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस है उसके चारों तरफ. आपको क्या लगता है इस यूनिवर्स में आपका रोल क्या है, आपकी भूमिका क्या है? बताइए. आपको जो भी ठीक लगता हो, जो आपके दिल से आवाज आए. हमने वी डोंट हैव टू रेफर टू एनी बुक, एनी एनी एनीथिंग व्हिच पीपल माइट हैव रेफर्ड टू, टॉक्ड अबाउट. किसी ने कुछ ने बोल दिया तो चलो हम कॉपी पेस्ट करते हैं. जो अंदर से आवाज आएगी, है ना? वैल्यू एजुकेशन अभी हम बात करते हैं. वैल्यू एजुकेशन, उसको सुनना बहुत जरूरी है. अंदर की आवाज सुन नहीं पाते लोग. आवाज हैं टू अर्न मनी एंड रिस्पेक्ट. ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इन आवर होल लाइफ टू सर्व मैनकाइंड. I sorry to interrupt, sir. Sorry to interrupt. Akhilesh, sir, please mute your mic. Noise is coming from your background. Yes, thank you. थैंक यू. वेरी नाइस. टू बी अ गुड पर्सन टू whom one remember always. अब देखिए, ये जो सब बातें हैं ना, ये हो सकता है फॉर द सेक ऑफ राइटिंग, आई माइट बी राइटिंग. कुछ बहुत सारी बातें हम करने के लिए करते हैं, लिखने के लिए करते हैं, लेकिन अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है ना? इसलिए मैंने आपसे कहा बिल्कुल ऑनेस्ट. यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं हो रही है या कोई, आई डोंट नो एनीवन, यू नो, ओवर हियर. सो लेट्स बी वेरी ट्रूथफुल एंड वेरी ऑनेस्ट कि हमारा रोल क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन आपस में इंटरकनेक्टेड है, राइट? एंड इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट आर यू हियर फॉर ऑन दिस ब्लू प्लैनेट? ये रोल से ही कनेक्टेड है एक्चुअली, ठीक है? हम इन चार क्वेश्चंस के इर्द गिर्द घूमेंगे, राइट? सो वेलकम टू दिस डिस्कशन, राइट? और रादर आई वुड से इट्स एन एक्सप्लोरेशन, joint exploration, right? So let me share some of the key features of this program. अब ये परेशान करेगा. Anyway, so let me share some key features that is the form of the proposal. कुछ प्रस्ताव के रूप में मैं आपके सामने कुछ रख रहा हूँ, ठीक है? आप उसको जांचें, सेल्फ एक्सप्लोर करें, राइट? मेरी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है? एक बहुत छोटी सी एक्सपेक्टेशन है कि आपको एक्सप्लोर करना है. एक्सप्लोरेशन सामने रखूंगा, जो प्रपोजल आपके सामने रखूंगा, यू हैव टू गो विद इन एंड यू नीड टू फाइंड आउट वेदर इट इज राइट और रॉन्ग फॉर यू एज ए ह्यूमन, राइट? एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर. सो बेस में तो हम ह्यूमन हैं ही, ठीक है? तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है? यू आर नॉट सपोज टू एग्री विद मी. आपको मेरे से बिल्कुल सहमत होने की जरूरत नहीं है. आपको एक्सप्लोर करना है, सेल्फ एक्सप्लोर करना है और वेरीफाई करना है. अपने अंदर जाके अपने आप से पूछना है, क्लोज योर आईज, वेदर इट इज राइट फॉर मी और नॉट, ठीक है? On the basis of that verification, if you find it to be right for you, only then accept it, otherwise you have full authority to reject it, ठीक है? तो इसका मतलब ये कोई हाँ में हाँ मिलाने वाला प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि हम वैल्यू एजुकेशन को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि वैल्यू एजुकेशन है क्या. और कुछ पोल्स आएंगे, कुछ सर्वेज आएंगे. मैं चाहूंगा आप, आई वुड अप्रिशिएट इफ यू टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन दैट टू रीच सम कॉन्क्रीट, यू नो, कंक्लूजन. And simultaneously, I would appreciate if you people, every one of you, keep a notebook with you with a pen and keep noting down key takeaways from this, from every slide. जब भी आपको लगे बहुत इंपॉर्टेंट की टेक अवे है, की टेक अवे क्या है? की टेक अवे इंपॉर्टेंट which you think can bring about a great change in my life, the way I perceive things, the way I think, right? तो उसको आप थोड़ा नोट कर लीजिए. लास्ट में जब सेशन के एंड में, I would appreciate
rather invite people who are with important key takeaways through the chat box or the audio participation. And in the end, I would invite sharing session from you people through audio. अभी मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ, किसी का माइक अभी भी म्यूटेड मोड में, अनम्यूटेड मोड में है, प्लीज इसको ऑफ करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा 1 मिनट में अपना जरा पैरेलल स्क्रीन एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि मैं आपके मैसेजेस देख पाऊँ. ओके, पीयूष जी का क्वेश्चन आया, हाउ आर ह्यूमंस कनेक्टेड टू दिस यूनिवर्स? वेरी नाइस. टू बी व्हाट यू आर, गुड कर्मा. We are here on this planet for a purpose decided by God. Oh my God, where is God? Who is God? God decide करेगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा. To make a name for yourself. अभी राज जी ने कहा अपना नाम बनाने के लिए. अच्छा, the basic aspiration to be satisfied in small things, to find out ourselves who we are, to know ourselves. चलिए समझते हैं इस बात को. ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं. I really like it. Wish I had some more time. We make our own destiny. ठीक है, डेस्टिनी क्या है इसको भी समझना पड़ेगा. भगवान कौन है, ह्यूमन कौन है, ये सब बातें समझनी पड़ेंगी, तब हम जाके इसको पूरे निष्कर्ष निकाल पाएंगे. 2 घंटे में मेरे ख्याल से जितना संभव हो पाएगा. ठीक है, हम आगे चलते हैं. तो सबसे पहले ही समझते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन को पिक करते हैं, व्हाट इज ह्यूमंस मोस्ट बेसिक एस्पिरेशन. फिर धीरे धीरे हम पूरा सर्कल पूरा करेंगे कि ह्यूमन बींग्स के लिए वैल्यूबल क्या है, हम यहाँ पे क्यों हैं, एज एन MBA, एज एन मैनेजमेंट ग्रेजुएट हमारा क्या रोल होने वाला है. डिफरेंट प्रोफाइल्स वी आर इनटू. हम टीचर भी हो सकते हैं, हम स्टूडेंट भी हो सकते हैं, हम कुछ भी हो सकते हैं, है ना. वो तो रोल प्ले है हमारा. तो व्हाट इज ह्यूमंस मोस्ट बेसिक एस्पिरेशन, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले मानव की मूल अभिलाषा क्या है. इससे क्लियर होगा. एक मैंने आपको इमेज दिखाई है, जस्ट थिंक अबाउट इट. व्हाट डज दिस इमेज से, हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस इमेज, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. मे बी इट वुड हेल्प यू एक्सप्लोर योर द मोस्ट बेसिक एस्पिरेशंस. बताइए, हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस इमेज, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज योर से ऑन दिस. प्लीज राइट. चैट बॉक्स इज ओपन. ठीक है, बताइए क्या, व्हाट इज बीइंग शोन ओवर हियर. इसके माध्यम से मैं आपका ध्यान एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ ले जाऊंगा. डबल फेस. ओके, वी आर समवन else out offs. True, may not be true. I'm just open. मैं बिल्कुल ओपन हूँ. I'm open to receiving anything whatever you know pour in. Sad from happy, double face, बाहर कुछ अंदर कुछ, happy from outside, inside sad. Every coin has two faces, fake smiles. Okay, very nice. चलिए, तो ये कौन है? ये कोई और नहीं है, ये हम ही हैं. ये आप और मैं हैं. कोई, हम बाहर की बात ही नहीं करेंगे आज, है ना. ये इस प्रोग्राम की खूबसूरती है. हम केवल अंदर की बात करेंगे, अपनी बात करेंगे. तो ये कौन है? ये कौन है? दिस इज व्हाट आई वांट एंड दिस इज व्हाट आई एम. ये मैं होना चाहता हूँ, ये मेरी एस्पिरेशन है और ये मैं हूँ. इसका क्या मतलब है? मैं क्या होना चाहता हूँ, मैं चाहता क्या हूँ और मैं क्या हूँ. इसको समझने की कोशिश करते हैं. हम सबकी चाहना क्या है? हो सकता है हम सबकी चाहना एंड गोल एक ही हो. शॉर्ट टर्म गोल डिफरेंट हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है एक हो. वी आर ओपन टू इट, वी आर ओपन टू एक्सप्लोरिंग. एक्चुअली मैं आप चाहता हूँ आप मेरे साथ एक्सप्लोर करें ये पूरा का पूरा प्रोग्राम. ये कोई वन वे कम्युनिकेशन नहीं है. बस ऑनलाइन की जितनी थोड़ी लिमिटेशन है उसके अंदर हमें रह के ये प्रोग्राम को समझना और बात करनी है. मैं क्या चाहता हूँ? आई डोंट वॉन्ट, डू आई वॉन्ट हैप्पीनेस. नाउ आस्क योर सेल्फ, हम क्या बात कर रहे हैं? वॉट आई वॉन्ट, मैं क्या चाहता हूँ. डू आई वॉन्ट हैप्पीनेस, अपने आप से पूछें और आंसर लिखें. दूसरा क्वेश्चन, डू आई वॉन्ट कॉन्टिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस, क्या मैं सुख चाहता हूँ और मैं क्या सुख की निरंतरता चाहता हूँ. अब इन दोनों में से ज्यादा प्रोमिनेंट कौन सा क्वेश्चन है? क्या मैं केवल सुखी होना चाहता हूँ या सुख की निरंतरता चाहता हूँ? क्योंकि जो आप कहेंगे इसका क्यों पूछ रहे हैं आप ये, हम इसलिए पूछ रहे हैं कि जब तक हमें क्लैरिटी नहीं होगी कुछ चीज़ों की, है ना, तब तक हम लाइफ का प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे. अगर मैं सुख चाहता हूँ तो आज सुखी होने के मेरे पास प्रोग्राम है ना, कि चलो कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, है ना, कुछ बाइक पे घूम आए, शॉपिंग मॉल हुआ है, तो मैं खुश हो गया.
But the point is, I want the continuity of happiness, and which is very much missing over here. खाने पीने में कितनी देर का सुख है? 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट at the most. But what I'm actually looking for is continuity of happiness. मैं सुख की निरंतरता चाहता हूँ. तो इन दोनों में से आप किसको पिक करेंगे? अगर आपके पास चॉइस हो तो that's very important to understand. दिन में खुश, रात को दुखी. दिन में भी 10 बार सुखी और दिन में ही 10 बार दुखी. रात तो बहुत दूर की बात है. In order to be relaxed, don't want to be harassed. You do be happy in small things. As life is short. अब देखिए हमने मान लिया life is short. Why one should. अब देखिए हो सकता है बहुत सारी मान्यताओं पे हमने बेस कर रखा हो, क्योंकि हमने जो मान लेते हैं हम अपनी लाइफ की प्रोग्रामिंग उसी हिसाब से तय करते हैं. मेरा मानना, मेरी बिलीफ सिस्टम, हो सकता है मेरी बिलीफ्स, कुछ बिलीफ्स गलत हो, मे बी ऐसा हो सकता है. अभी हम बात करने वाले हैं उसके बारे में, है ना. बट आप लिखते रहिएगा. Most of the answers which I can see, second, continuous happiness, right? चलिए, इसका मतलब क्या निकल के आता है? I want continuity of happiness 24/7. मैं हर सुख, हर पल, हर क्षण सुख की निरंतरता चाहता हूँ. अब देखते हैं मैं हूँ क्या. I may be happy at one point of time. हो सकता है आज मैं सुखी हूँ अभी इस समय, बट क्या गारंटी है नेक्स्ट मोमेंट की, नेक्स्ट आवर की, नेक्स्ट डे की, नेक्स्ट मंथ की? क्या गारंटी है? मैं कह रहा हूँ अगले दिन की गारंटी नहीं है. Despite of all accumulation, despite of all blessings, I get into unhappy zone. The point is what I am. क्या मैं निरंतर खुश हूँ? That's a very important point to understand, to ponder upon. बताइए, क्या मैं निरंतर खुश हूँ? Is my happiness continuous? बताइए. अगर नहीं, हो भी सकता है yes, पर ये थोड़ा सा मुश्किल होगा. कुछ जो बहुत कम लोग मिले हैं जिन्होंने कहा yes, बहुत कम का मतलब समझ लीजिए 1%. तो ज्यादातर का आंसर रिस्पॉन्स ही आया कि माई हैप्पीनेस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, एंड सम पीपल विल सेड दैट इट इज रियली नॉट पॉसिबल. तो इसी के आज हम चेक करने वाले हैं कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं है. अच्छा, हैप्पीनेस की जब हम बात करते हैं, इज माई हैप्पीनेस कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें 5 क्वेश्चंस निकल के आते हैं कि पहले तो सुख है क्या, व्हाट इज हैप्पीनेस, और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एजुकेशन इसको कैसे एड्रेस करता है. What is happiness? Number 1. Number 2, what are the sources of happiness? You have assumed. आपके लिए सुख की परिभाषा क्या है? और दूसरा, किन सोर्सेज को आपने सुख मान रखा है? ठीक है. कीप एक्सप्लोरिंग. केवल आपको क्या करना है, अभी एक्सप्लोर करना है. अपने मन की कोई बात हो तुरंत आपने ड्रॉप करनी. क्वेश्चन है, ड्रॉप करना है. अगर आपको लगता है कोई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल गया, उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा 80% ऑफ द टाइम माई फोकस इज ऑन मेन स्क्रीन, है ना. चैट बॉक्स में भी मैं देख रहा हूँ बराबर. लेकिन आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसका आंसर नहीं मिला है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो ऑटो रिजॉल्व में क्लियर होते जाएंगे. ये ऐसा मेरा मानना है. और नहीं होता है तो आप मुझे तुरंत उसको कॉपी पेस्ट कीजिएगा, उस क्वेश्चन को दोबारा पूछ लीजिएगा. तो सुख क्या है, सुख कैसे परिभाषित करेंगे, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस. थर्ड, हुज नीड इज हैप्पीनेस. सुख किसकी अभिलाषा है? आप कहेंगे मेरी है. ठीक है, ये बात क्लियर है. इफ इट इज माई नीड, तो मैं कौन हूं? अगर ये मेरी सुख की जो नीड है वो मेरी है, तो मैं कौन हूँ? आप कहोगे मैं कौन हूँ? मैं आपका नाम भी नहीं जान रहा, ना आपका सेक्स से मुझे कनेक्ट करने कंसर्न है. आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, पर इसके बेस में क्या है? अगर मैं कहूँ कि मैं एज ए ह्यूमन कौन है, तो यहाँ थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है. पॉसिबिलिटी. तो अभी इसको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं. तो हाउ टू एंश्योर, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ टू एंश्योर कॉन्टिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस देन. क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था, इज माई हैप्पीनेस कॉन्टिन्यूअस. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नो. 95 to 99% is no. So how to ensure continuity of happiness? Is it really possible? Because some people may say it is not possible. But this is what I want to explore, whether it is possible or not. यही तो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं. तो वापस अपनी पहली स्लाइड पे आ जाते हैं. तो ये तो पता लग गया कि what is humans most basic aspirations. Continuity of happiness. सुख की निरंतरता. ये आधा आंसर है. There is more to it. Want to add to it? Please write it down. मैं एक एक स्टेप करके ऊपर चलूंगा. बहुत
एक एक स्टेप और बहुत ही सिंपल स्टेप से मैंने एक बात रखने की कोशिश की है। ठीक है जी, तो आत्मिक जी का कुछ आया है, इसको पढ़ लेते हैं। बिलीव इन फाइंडिंग हैप्पीनेस इन एवरी मोमेंट, ओके, ऑन लर्निंग। आयुष जी बड़ा अच्छी बात लिखी है आपने। मैनी राज जी ने भी लिखा है, नो वन कैन बी हैप्पी ऑल द टाइम। दिस इज व्हाट वी वांट टू एक्सप्लोर, वेदर इट इज possible or not, because if I think it is not possible, I'll not make an appropriate program, isn't it? So I believe in finding happiness in every moment or learning from those moments. चलिए इसको भी समझते हैं। No, nobody can be happy 24 because everyone has a lower point and we fight with that lower point and strive to be happy. Happiness is what you make of it. Like someone will happy in small things, while if someone gets a ship, then also won't be happy. Okay. How can humans connect to the universe? पीयूष जी आपका आंसर अभी मिलेगा आपको, पर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। हम यूनिवर्स से कनेक्टेड कैसे हैं? When you know life is good and living in peace and harmony is happiness, we need to enjoy the little things. Sadness and happy both at the side. चलिए आप आगे चलते हैं। हैप्पीनेस एंड सैडनेस लाइफ के दो पहलू हैं, हो सकता है एक बिलीफ हो। आगे चलते हैं, इन 5 क्वेश्चंस को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट डू यू थिंक इज इंपॉर्टेंट टू यू फॉर हैप्पीनेस इन लाइफ? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर भी मैं आपके सामने रखूं, फैसिलिटेट, है ना, ताकि हम जल्दी से मूव कर सकें। अदरवाइज टाइम की थोड़ी सी, अदरवाइज आपके सामने ये तीनों आंसर नहीं देता। व्हाट डू यू थिंक इज इंपॉर्टेंट टू यू एज ए ह्यूमन फॉर हैप्पीनेस इन लाइफ? संबंध, सुविधा, सामान, उपकरण, आपका मोबाइल फोन, आपकी कार, आपके कपड़े, ये सब फिजिकल फैसिलिटी और कन्वीनियंस ब्लॉक में आ रहा है। एंड नंबर 3, राइट अंडरस्टैंडिंग और मे बी होलिस्टिक अवेयरनेस और विजडम, व्हाटएवर यू मे कॉल इट। बताइए आपको क्या लगता है, क्या इंपॉर्टेंट है? राइट अंडरस्टैंडिंग, लव विद योरसेल्फ, गुड हेल्थ एंड साउंड माइंड। साउंड माइंड क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस, राइट अंडरस्टैंडिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। ओके, वेरी नाइस। So the point is combination of all. What is the priority order? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे कहूं कि बताएं, आप इसको प्रायोरिटाइज कीजिए, तो सबसे पहले आप क्या रखेंगे, है ना? तो आप प्रायोरिटाइज में 1 2 3, पहला जैसे रिलेशनशिप है, फिजिकल फैसिलिटी 2 है, राइट अंडरस्टैंडिंग 3rd है, तो 1 2 3 कर दीजिए, 3 2 1 कर दीजिए, 2 1 3 कर दीजिए, व्हाटएवर। तो मुझे इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 3 1 2 आंसर आ रहा है, 1 3 2 3 1 2 3 1 2, ओके, 3 1 2 1 3 2, ओके, 3 1 2 1 3 2 भी आ रहा है, 1 3 2 भी आ रहा है, ओके, 3 1 2 3 1 2 3 1 2 I 1 3 2, ठीक है, आई गॉट एन आइडिया। ठीक है, इसी को हम जांचने वाले हैं। 7 8 9 तो है ही नहीं, आयुष जी कहाँ पहुंच गए? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप अगले पड़ाव पे चलते हैं कि प्रायोरिटी ऑर्डर एक्चुअली क्या है और क्या होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है अगर हमारा राइट प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है कुछ चीज़ों का, तो हमारी लाइफ की प्रोग्रामिंग हो सकता है गड़बड़ हो जाए। क्योंकि हैप्पीनेस हो सकता है मेरी राइट प्रायोरिटी ऑर्डर से जुड़ा हुआ हो। क्यों? क्योंकि राइट प्रायोरिटी ऑर्डर से आपका डिसीजन मेकिंग कनेक्टेड है। जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसका बेस क्या होता है कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। जैसे कि लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल, मैं कहूँ आपको बताओ क्या चाहिए, हवा पहले चाहिए या पानी पहले चाहिए? आपका प्रायोरिटी ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है, एंड बोथ थिंग्स आर रिक्वायर्ड, एयर एंड वाटर बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, इजंट इट? है ना? इसी तरह तीनों चीजें जरूरी हैं, इसी तरह हवा और पानी जरूरी है। पर मैं कहूँ आपको तुरंत मुझे अरेंजमेंट करना है पहले, तो किस चीज का अरेंजमेंट करूंगा? सो ऑब्वियसली द राइट प्रायोरिटी ऑर्डर एयर का, क्योंकि एयर के बिना मैं 1 मिनट शायद मुश्किल से कटे, है ना? आफ्टर 3 मिनट्स आई एम गॉन, बट विदाउट वाटर आई कैन लिव फॉर मे बी 24 आवर्स और मे बी 48 आवर्स और मे बी मोर देन दैट, है ना? अब मेरी जो लाइफ की प्रोग्रामिंग होगी, मैंने जो प्रोग्राम तैयार करूंगा, अगर ये समझ के करूंगा कि पानी ज्यादा कीमती है और हवा को बाईपास कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा, सो मेरी लाइफ की प्रोग्रामिंग मेरे डिसीजन किस पे बेस्ड है? मेरे प्रायोरिटी ऑर्डर पे, कि मैंने किसको सही इंपॉर्टेंट माना हुआ है, किसको ज्यादा वैल्यूबल माना हुआ है ना? यहाँ पे वैल्यूबल वर्ड आ रहा है कि व्हाट इज मोर वैल्यूबल टू मी, राइट, फॉर अचीविंग माई मोस्ट बेसिक एस्पिरेशंस इन लाइफ। ठीक है जी, ये बात क्लियर है? आगे चलें। इसको समझते हैं कि इन तीनों में से राइट प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए। सो लेट अस बिगिन विद दिस। मैंने आपको एक और इमेज दिखाई है।
व्हाट डू यू सी अगेन इन दिस इमेज? जैसे हमने पिछली इमेज को इंटरप्रेट किया था, मैं चाहूंगा इस इमेज को भी आप इंटरप्रेट करें। बताइए, व्हाट डू यू सी इन दिस इमेज? थोड़ा सा हम पीछे चल रहे हैं, 15 मिनट्स में थोड़ा सा अभी आई विल बी इन रशिंग मोड। बताइए। सो ड्रॉप योर थॉट्स इन द चैट बॉक्स, फील फ्री, whatever comes to your mind. What do you see in the chat? What do you see in this image? आप कैसे इमेज को इंटरप्रेट करेंगे, किस तरीके से इसका आकलन करेंगे? What is happening? We miss our childhood. Heart are connected. Relationship, inner souls. Connection is necessary between two people. Okay. Again, ये किसी और की इमेज नहीं है, ये आपकी और मेरी इमेज है। मे बी लेफ्ट को आप हैं, राइट को मैं हूँ। मे बी लेफ्ट को आप हैं, राइट को आपके आपके फादर हैं, आपके आपकी मदर हैं, आपके नेबर हैं, आपके टीचर हैं, कोई भी हो सकता है। सो पॉइंट ये है कि दीज आर टू ह्यूमंस। अब दीज टू ह्यूमंस कुड बी एनीवन। एक इंडियन हो सकता है, दूसरा पाकिस्तानी हो सकता है ना। प्लैनेट पे रहने वाले दो ये मानव हैं। तो हम अपनी फैमिली से शुरू करते हैं, एक आप हैं और एक आपके पेरेंट हैं, मे बी फादर और मदर, ठीक है। और फॉर दैट मैटर इट कुड बी एनीवन, ठीक है। अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपके पास चॉइस हो, कि कैसी चॉइस? अगर आपके पास चॉइस हो विश्वास और अविश्वास से रहने की संबंधों में, तो आप क्या पिक करेंगे? व्हाट वुड यू वांट दैट रिलेशनशिप टू बी फुल ऑफ? आप उस संबंध में क्या चाहेंगे? विश्वास से भरा हुआ चाहेंगे या अविश्वास से भरा हुआ चाहेंगे? या कभी विश्वास चाहेंगे या कभी अविश्वास चाहेंगे? इसी तरीके से आप सम्मान के साथ जीना चाहेंगे आप, या अपमान चाहेंगे उस संबंध में? आप स्नेह चाहेंगे उस संबंध में या ईर्ष्या चाहेंगे उस संबंध में? ठीक है, इसके लिए हम काम करते हैं। मैं आपको एक गूगल फॉर्म मैंने आपको अभी भेजा है, देखिए आपको मिल गया होगा, अभी चैट बॉक्स में आया है। इसको ओपन कीजिएगा और गूगल फॉर्म में इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे ले जाएंगे, एक बात पे ले जाएंगे, जिसको जानना और जिसको समझना बहुत जरूरी है। ये आपके पास सामने आएगा आपके, आप ओपन करेंगे तो ये गूगल फॉर्म खुलेगा। इसको आप क्लिक कीजिएगा। बताइएगा। वेरी नाइस। आप अपने क्वेश्चन ड्रॉप करते रहिएगा, है ना, फिर हम उसके निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। आपने ये जल्दी से इसको, अच्छा इसमें केवल 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, 3 क्वेश्चंस, राइट। 4th और 5th को छोड़ देना है। ए बी सी, ओनली 1A 1B एंड 1C। जितना जल्दी होगा उतना ही हम एक, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इनपुट आएगा उसके बेसिस पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को देख पाएंगे कि देखिए सबकी मूल चाहना क्या है, हम चाहते क्या है संबंधों में। कोई भी रिलेशनशिप हो, एनी रिलेशनशिप, कोई किसी प्रकार का कोई प्रभाव दबाव के बिना आप उस संबंध में क्या कैसा जीना चाहेंगे? अगर आपके पास चॉइस हो तो, कि संबंधों में विश्वास हो या अविश्वास हो, कोई भी संबंध हो। मैं कह रहा हूँ एक व्यक्ति जिसके साथ आपके संबंध खराब भी हैं, है ना, तो क्या आप चाहेंगे उसके साथ? आपकी इंटेंशन क्या है? देखिए मैंने एक वर्ड यूज किया है, आपकी इंटेंशन क्या है? व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू यू? नेचुरल एक्सेप्टेबल का मतलब जो आपको सहज रूप से स्वीकार हो, सहज, है ना। नेचुरल एक्सेप्टेबल का मतलब व्हेन यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस, यू डोंट हैव टू रेफर टू अ बुक, यू हैव टू आस्क योर ओन सेल्फ, है ना। आपको अपने अंदर से अंदर जाके
पूछना पड़ेगा अपने आप से, अंतरात्मा की आवाज कह सकते हैं, है ना। और आवाज ये आएगी कि इसके साथ में किस तरीके से संबंधों में रहना चाहूंगा, विश्वास में या अविश्वास में, सम्मान के साथ या असम्मान के साथ, है ना, स्नेह के साथ या ईर्ष्या के साथ, है ना। 51 रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं, मेरे ख्याल से हम उससे एक अच्छा अंदाजा लगा सकते हैं। देखते हैं क्या आंसर आया। ओके, देखिए आप इसको रिव्यू भी कर सकते हैं, हो सकता है क्वेश्चन समझने में कुछ गलती हो या मेरे समझाने में कुछ गलती हो जाए। समटाइम्स ट्रस्ट, देखिए कुछ लोगों ने लिखा है कि 36% लोगों ने लिखा है कि समटाइम मैं चाहूंगा कि कभी कभी मैं विश्वास पे रहूं और कभी कभी वो आदमी मुझे धोखा दे। इसका ये मतलब हुआ, मैं चाहता हूं कि वो व्यक्ति जिसके साथ मैं रह रहा हूं वो हमेशा हम एक दूसरे के साथ विश्वास में रहें, और कभी कभी, है ना, 7 में से 3 दिन वो मुझे धोखा दे। इसके हिसाब से, इस सर्वे के हिसाब से आपने जो आंसर दिया वन ने, है ना। ऑलवेज मिसट्रस्ट किसी ने नहीं लिखा है, और 63% लोगों ने लिखा है कि हमेशा ट्रस्ट के साथ रहना चाहेंगे, ऑलवेज विदाउट एनी ब्रेक, है ना। इसी तरीके से अच्छा, नेचुरल एक्सेप्टेबल टू इन रिलेशनशिप, अच्छा कुछ लोग ओके, इसमें सॉरी गलती से ऑलवेज डिसरिस्पेक्ट आना था, मिसट्रस्ट कर दिया इसमें 1B में, है ना? और इसमें भी व्हाट इज नेचुरल एक्सेप्टेबल टू इन रिलेशनशिप, ऑलवेज अफेक्शन, अच्छा कभी अफेक्शन, मतलब इसका देखिए 1C का क्या आंसर आता है, आपने जो लिखा है इसमें, इसलिए कह रहा हूँ रिव्यू कर सकते हैं इसको, व्हाटएवर जो भी आपका नेचुरल आंसर है, केवल मुझे उसी से मतलब है। मैं चाहता हूँ कि कभी कभी लोग मेरे से स्नेह करें और कभी कभी लोग मेरे से ईर्ष्या करें। 46% ने ऐसा सॉरी ये 51% ने ऐसा लिखा है कि कभी कभी लोग मेरे से स्नेह करें और कभी कभी लोग ईर्ष्या भी करें मेरे से। तो इसलिए इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। मे बी समथिंग इज रॉन्ग इन, कुछ समझने में या तो गलती हुई है या मेरे समझाने में गलती हुई है। आई डोंट नो वेदर इट इज एडिटिंग इज पॉसिबल और नॉट, ठीक है, क्योंकि जब इसको आप ठीक ठीक दोबारा से आकलन करेंगे, ठीक ठीक इस बात को समझेंगे, तो हर एक व्यक्ति हमेशा विश्वास के साथ जीना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि कोई उसको धोखा दे। क्या आप जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो क्या आप सब ये आपकी आकांक्षा रहती है, आपकी आपकी चाहते हैं कि दूसरा आपको धोखा दे और गलत सब्जी दे दे? आप चाहते हैं कि नहीं? देखिए अभी पॉइंट हो सकता है इसको गलती क्या समझने में गलती हो कि मुझे धोखा दे रहा है, चाहने की बात हो रही है। अभी हम बहुत ही क्लियर आंसर है, क्लियर क्वेश्चन है कि आप चाहते क्या है, व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू इन दैट रिलेशनशिप। इसलिए क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है, ठीक है। तो 58 रिस्पॉन्स आए, मैं इसको हटा देता हूँ, तो वापस अपनी स्लाइड्स पे आते हैं। तो अगर इसको थोड़ा सा, बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया ना कि टाइम कम है, हम बहुत क्लियर तरीके से कुछ बातों को रख नहीं पाते हैं, ऑनलाइन आमने सामने की थोड़ी बात अलग होती है। तो आंसर अगर आप दोबारा अपने अंदर जाके देखेंगे ना, तो एक व्यक्ति की हमेशा चाहना ऑल द टाइम विश्वास, सम्मान और अफेक्शन की रहती है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि दूसरा आदमी उस पर विश्वास करे, दूसरा भी चाहता है मैं उस पर विश्वास करूं। चाहने की बात हो रही है अभी, अगेन टाइम एंड अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट आई वांट, व्हाट इज माय नेचुरल एक्सेप्टेंस, व्हाट इज माय इंटेंशन, है ना। और हर एक व्यक्ति स्नेह के साथ रहना चाहता है दूसरे के साथ। और ये आंसर हमेशा एक ही क्यों आता है, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, क्यों? बिकॉज हमारे अंदर एक इनकरप्टेबल फैकल्टी है इन ऑल ह्यूमंस, वी आर एंडोव्ड with this incorruptible faculty which is called natural acceptance। एक सहज स्वीकृति की हमारे अंदर एक फैकल्टी है जिसको जब हम रेफर करते हैं तो आंसर ये आता है। जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि अभी तक ठीक ठीक ये बात जब समझ में आती है तो आंसर ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन ही आएगा। क्या आप चाहेंगे कि कोई आपको धोखा दे? क्या आपके पिता आपका अपमान करें? कभी भी। कर रहे हैं वो अलग बात है, हम कर रहे हैं वो भी अलग बात है, पर चाहते क्या है? तो हम जब अपनी चाहना को पूछते हैं, अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को रेफर करते हैं, तो आंसर एक ही आता है। एंड दीज फीलिंग्स आर एक्सपेक्टेड बाय एवरीवन फ्रॉम ऑल अदर ऑल द टाइम। एक बच्चे की भी हमेशा एक्सपेक्टेशन होती है, ये चाहना बनी होती है कि बड़ा उसका सम्मान करे, है ना। अब देखिए मैं एक छोटा सा आपको क्लिप दिखाता हूँ, बस 1 मिनट का क्लिप दिखाऊंगा कि जब हम बच्चे का भी सम्मान करते हैं, है ना,
तो बच्चों के चेहरे पे आप भाव देखिए, एक छोटा सा बच्चा मिल गया, खो गया था जो सितारा, मिल गया, मिल गया, रोशन हुई सारी जमीन, जगमग हुआ सारा जहां, उड़ने को तू आजाद है, बंधन को ही अब है कहाँ, धूप है शम्से दिखा, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं, उड़ चल कहीं, दिल कुछ जहाँ, तेरी तो मंजिल है वही। आपने देखा मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था, इसमें कोई देवर नो डायलॉग्स बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, बट कुड यू सी द फीलिंग पार्ट when he was being respected, when he was being showered upon by the teacher, when he painted, when he sketched a picture of that student. hmm? आप इन भावों को महसूस कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि भाव बिल्कुल डेफिनेट है ना, और एक बच्चा भी इन भावों को महसूस कर पाता है। क्यों? अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दीज फीलिंग्स आर एक्सपेक्टेड बाय एवरीवन। एवरीवन में एवरीवन की कोई एज नहीं है, कोई जेंडर नहीं है उसका, कोई कास्ट नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, कोई नेशनैलिटी नहीं है। एवरीवन मीन्स एवरीवन। हर एक व्यक्ति को, मानव को इन फीलिंग्स की चाहना हमेशा बनी रहती है। इसका मतलब एक बच्चे को भी सम्मान चाहिए। ये बात क्लियर हो रही है? इसका मतलब क्या हुआ, इससे एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, व्हाट इज द आउटकम फ्रॉम दिस। और अभी देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है आत्मिक पांडे जी ने, नोबडी वांट्स मिसट्रस्ट, कोई अविश्वास नहीं चाहता। चाहने की बात हो रही है, कोई नहीं चाहता, लेकिन हम फिर भी अविश्वास करते हैं और अविश्वास पाते हैं, अपमान करते हैं और अपमान पाते हैं। लेकिन वो क्यों पाते हैं, क्यों क्यों हो रहा है वो बात, वो भी हम वी वांट टू टच अपॉन इट इन द स्लाइड्स टू कम। बट अभी केवल हम अपनी मूल चाहना को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी इंटेंशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो दुख है आज की डेट में वो दूसरों की इंटेंशन को लेके बना हुआ है कि वो चाहता है ऐसा है। लेकिन यहाँ से एक बात बहुत क्लियर हो रही है कि हर एक व्यक्ति कैसा जीना चाहता है, विश्वास के साथ, सम्मान के साथ और स्नेह के साथ, है ना। और एक वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, एक 10 साल का बच्चा भी हो सकता है, 5 साल का बच्चा भी हो सकता है, 80 साल का बुजुर्ग भी हो सकता है। आपकी हमेशा चाहना बनी होती है विश्वास की, सम्मान की, स्नेह की। मैं कहता हूँ आप सड़क पे चल रहे हैं, सड़क पे चलते चलते लेट अस सपोज आपकी बाइक स्किड कर जाती है ना, और आप गिर जाते हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि दूसरा व्यक्ति जो स्ट्रेंजर है आपको उठाए। क्यों आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है बताइए, है ना? क्यों चाहते हैं कि आपको उठाए? क्यों आप उस पर विश्वास करते हैं कि मुझे उठाएगा? क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम सब संबंधों में हैं, वी आर इन रिलेशनशिप विद ईच अदर। हम सभी एक दूसरे के संबंध में हैं, इसलिए हमारी ये चाहना बनी हुई है। वो जो स्ट्रेंजर है उससे हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन विश्वास, सम्मान और स्नेह के लेवल्स पे हम एक दूसरे से हमेशा जुड़े हुए हैं, है ना। इसका मतलब विश्वास और सम्मान ये दो ऐसे भाव हैं जो पूरी ह्यूमैनिटी को इन दोनों थ्रेड्स ने आपस में कनेक्ट कर रखा है, और यही कनेक्शन ही संबंध है ना। ये इसका बहुत की इंपॉर्टेंट की टेक अवे है दैट वी आर इन रिलेशनशिप विद ईच अदर। हम एक दूसरे के साथ संबंध में हैं। ये बात पकड़ पाए हैं आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर मैं ये संबंध देख पाता हूं, राइट, तो बहुत बढ़िया बात होगी, है ना। लेकिन अगर नहीं देख पाता हूं, अब ये क्या है, ये संबंध, ये जो भाव की जो स्ट्रिंग्स हैं, ये दिखते तो नहीं है, ये दिखते नहीं है, आंखों से नहीं दिखते। आंखों से कहाँ दिखते हैं? ये तो मन की आंखों से दिखते हैं, ये तो समझ से दिखते हैं। जी दिखते हैं तो मैं उनके साथ रिस्पॉन्ड करता हूँ, कोई भी संबंध हो, उनकी जरूरत होती है, उनको पूरा करता हूँ।
लेकिन अगर ये संबंध नहीं दिखता तो क्या निकल के आता है? तो ऑपोजिशन निकल के आता है। क्योंकि ये जो 3 भाव है, मिनिमम 3 भाव है, ऐसे 9 भाव है, 3 भावों के साथ हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है और यही संबंध है, क्योंकि हम इन भावों से जुड़े हुए हैं, है ना? और इन संबंधों में रहना ही हमारा स्वभाव है, क्योंकि आपकी नेचुरल एक्सेप्टेंस है। नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब एवरी टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू वुड पिक दिस। So whatever is natural acceptable to me, it is my स्वभाव, it is my innateness. तो जब मैं ये देख पाता हूँ तो जिंदगी शुरू होती है, और नहीं देख पाता हूँ तो किसी भी व्यक्ति के लिए मैं विरोध में आ सकता हूँ। अपने पेरेंट्स के लिए भी आ सकता हूँ, अपने टीचर्स के लिए भी आ सकता हूँ, अपने नेबर्स के लिए भी आ सकता हूँ, किसी के लिए भी आ सकता हूँ। अब बताएं, मैं दोबारा आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज योर नेचुरल एक्सेप्टेंस? संबंध या विरोध? बताइए, क्या नेचुरल एक्सेप्टेंस है आपकी? अगर आपको पिक करना पड़े तो आपकी नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है? सहज स्वीकृति क्या है? सहज, बिल्कुल सहज, जिसमें आप सहजता से पिक करते हैं किसी चीज को, है ना? यही हमारी सहज स्वीकृति है, रिलेशनशिप। और जब हम अपने स्वभाव में रहते हैं, इन भावों के साथ बने रहते हैं, दूसरों के साथ इन भावों के से कनेक्टेड रहते हैं, तो सुख मिलता है। सुख ही नहीं, निरंतर सुख मिलता है। अब देखिए, अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स हमेशा विश्वास, सम्मान और स्नेह के साथ रहते हैं, आप भी रहते हैं, वो भी रहते हैं और व्यक्त करते हैं, है ना, तो ये सुख की निरंतरता रहती है इसमें। ऑन दी अदर हैंड, एंड देन वी रिस्पॉन्ड ऑल्सो। अब यहाँ पे अगर कोई दूसरा गलती कर रहा है लेकिन मैं अपने संबंध देख पा रहा हूं, मैं फिर भी रिस्पॉन्ड करता हूं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, माँ है, उसका 2 महीने का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, कितनी शरारतें करता है, कितनी चीजें तोड़ता है, जगह जगह गंदगी फैलाता है, लेकिन वो फिर भी माँ अपने पूरे मन के साथ उसकी सेवा करती है, सफाई करती है, बच्चे को नहलाती है, दूध पिलाती है, उसको बड़ा करती है। क्यों? वो उसको इतना परेशान कर रहा है, कभी बाल खींचता है, कभी कुछ कर रहा है, कभी सोने नहीं दे रहा, है ना? क्यों? क्योंकि वो संबंध देख पा रही है। जब संबंध देख पा रही है तो दूसरे की गलतियों को माफ भी करता है आदमी, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? हम रिस्पॉन्ड करते हैं दूसरे संबंधों के साथ अगर वो गलती कर रहे हैं तो, है ना? लेकिन जब हम संबंध नहीं देख पाते किसी के साथ तो विरोध में रहते हैं, अविश्वास, अपमान, ईर्ष्या, है ना? ये नेगेटिव फीलिंग्स, ये कोई भाव नहीं है। भाव की डेफिनेशन है वैल्यू एजुकेशन में, भाव वो जो मुझे सहज स्वीकार हो। और हमने अभी चेक किया था, हमें सहज स्वीकार तो विश्वास ही है, हमें सहज स्वीकार तो सम्मान ही है, अपमान सहज स्वीकार है ही नहीं। एक बच्चे को ही नहीं है तो बड़े को कैसे हो सकता है? सोचने की बात है ना? तो ये भाव नहीं है, ये भावों का अभाव है। इसलिए मैं इसको नेगेटिव फीलिंग्स बोल रहा हूँ। नेगेटिव फीलिंग्स बोलना भी गलत है, ये भावों का अभाव है ना? तो जब हम भावों के अभाव में रहते हैं तो हम दुखी रहते हैं और इनसिक्योर रहते हैं, असुरक्षा रहती है ना? लेकिन जब हम भावों के साथ रहते हैं तो हम सुरक्षित भी महसूस करते हैं। तो सुरक्षा कहाँ से आती है? संबंधों से आती है। हम्म, ये बात क्लियर हो पा रही है? तो अब जब हम इस बात को समझते हैं, जब हम इस रिलेशनशिप को देख पाते हैं तो रिस्पॉन्ड करते हैं। जब हम विरोध में रहते हैं तो या तो इंटरनल रिएक्ट करते हैं या एक्सटर्नल रिएक्शन देते हैं। मान लो पिता ने कुछ कह दिया, कुछ भी कह दिया, अब मैं उनके सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उनके इंटेंशन पे डाउट करता हूँ कि मुझे दुखी करना चाहते हैं। लेकिन अभी हमने चेक किया कि हर एक व्यक्ति विश्वास, सम्मान, स्नेह के भाव के साथ रहना चाहता है, दूसरे के साथ हमेशा हार्मोनाइज करना चाहता है, दूसरे के साथ संगीत में रहना चाहता है, दूसरे के साथ संबंध में रहना चाहता है ना? लेकिन मैंने क्या मान लिया कि उसके इंटेंशन में प्रॉब्लम है। इन इंटेंशन का इशू ही नहीं है, इंटेंशन इज इंटैक्ट ऑल द टाइम बिकॉज इट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी। क्या? इन संबंधों में रहना, इस संगीत में रहना, है ना? अब जब मैं डाउट करता हूं दूसरे के इंटेंशन पे, पेरेंट्स की, टीचर्स की, कि ये तो मुझे परेशान करना चाहते हैं, ये तो मुझे चाहते हैं कि मैं दुखी रहूं, है ना, ये मेरे साथ हार्मोनाइज नहीं करना चाहते, है ना, तो मेरे अंदर इंटरनल रिएक्शन चलने लगता है। अगर मैं नहीं बोल पाता तो पिता से डरता हूँ, टीचर से डरता हूँ, इंटरनल रिएक्शन में रहता हूँ। लेकिन या रिएक्ट कर देता हूँ कभी कभी,
बोल भी देता हूँ। लेकिन अगर मुझे संबंध नजर आने लग जाता है और दूसरे की इंटेंशन क्लियर होती है कि इंटेंशन में कोई फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट किसी और लेवल पे जाके इंटेंशन में नहीं है, एटलीस्ट अभी देखते हैं ये फॉल्ट कहाँ पे है, अभी अभी वही चेक करने वाले हैं कि फॉल्ट आ कहाँ से रहा है। अगर इंटेंशन सही है तो प्रॉब्लम कहाँ पे है फिर, है ना। तो फिर क्या होता है, दूसरे की गलती को भी मैं माफ करने लग जाता हूँ। एंड दैट इज व्हाट इज ह्यूमनिस्टिक, नो, द वे ऑफ लिविंग। दूसरों की गलतियों को भी माफ करने लग जाता हूँ, हर चीज को रिस्पॉन्ड करने लग जाता हूँ। और दूसरों के लिए एक एक स्रोत बनता हूँ इंस्पिरेशन का। हम्म, और फिर गुस्सा भी नहीं आता छोटे छोटे, क्योंकि मैं संबंध देख पाता हूँ। माँ को कहाँ गुस्सा आता है अपने बच्चे पर, कितना परेशान करती है। उतना ही उसको उतना ही प्यार करती है जितना शैतानी करता है, जितना वो दुखी करता है। और माँ भी देखिए कितना कभी कभी उसको मारती है, पीटती है, बच्चा फिर भी उसके साथ चिपकता है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के इंटेंशन के प्रति आश्वस्त हैं। आपने देखा कभी माँ को अपने बच्चे से कैसे बात करती है? वो कहती है, हमारी हमारी एक जब बचपन में थे तो हमारी माँ हमें कहती थी, अगर अगर तुझे चोट लग गई, गिर गया ना, तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। मतलब आप देख रहे हैं, बोला लेकिन संबंध के भाव से। इससे क्या लगता है, इंटेंशन में कोई फॉल्ट नहीं है। वो कह रही है तेरी चोट को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो केवल हमें पता लगता है कि केवल कहने के लिए किया गया है, वरना माँ का तो अनकंडीशनल लव है कि अगर तू गिर गया तो तुझे मारूंगी, तो गिरना नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं, क्योंकि पूरी की पूरी तरह आश्वस्ति है, पूरा का पूरा 100% विश्वास है, इसलिए बच्चा अपनी माँ से चिपकता है। लेकिन एक समय के बाद जब उसको डाउट होने लगता है इंटेंशन पे पेरेंट्स की और पेरेंट्स को बच्चों की, तब जाके दोनों ही ऑपोजिशन में चले जाते हैं, इंटरनल रिएक्शन में जीने लगते हैं या रिएक्ट करने लगते हैं। और यहाँ से हमारी कॉन्टिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस ब्रेक्स, है ना। तो अब आप देखिए, आपके सामने ही पूरी की पूरी इमेज है। यहाँ से पता लगेगा कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस कहाँ से आ रहे हैं। आप एक एक प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, है ना। लेकिन अगर ये पूरी बात नहीं समझे कि ह्यूमन है कौन, ह्यूमन चाहता क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है, तो सब कुछ कमा के भी आदमी हमेशा विरोध में रहता है। एक छोटा सा क्लिप देखते हैं, है ना। फिर तुम इसको समझते क्या हो? यहाँ पर मैं कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। तो मैंने कब कहा कि तुम नौकरानी हो? मैंने कहा क्या? लेकिन बिहेव तो तुम ऐसे ही करते हो ना, जैसे कि मैं यहाँ पर तुम्हारी नौकरानी बैठी हुई हूँ। अरे यार, मैंने सिर्फ इतना ही तो कहा कि भैया मेरी शर्ट प्रेस नहीं है। ये ऐसे तो कोई बात नहीं हुई ना जिसका तुमने बात का बतंगड़ बना दिया। मैं कोई जादूगर नहीं बैठी कि तुमने सारे बोला कि ये काम कर दो, वो काम कर दो, सारे काम हो जाएंगे। मैंने कब कहा कि तुम जादूगर हो? मैंने ऐसा कहा? बोलने की जरूरत नहीं होती है ना, तुम्हारी हरकतें बता देती हैं। अनु ये कर दो, अनु वो कर दो, मेरा खाना बना क्या, मेरे कपड़े हुए क्या। अरे मैं कोई रोबोट नहीं हूँ। ऐसा है, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं, मुझे अभी ऑफिस जाना है, ठीक है? शांति से ऑफिस जाना चाहता हूँ। हाँ, और अचानक करके तुम शांति से ऑफिस जाओ, मेरा मूड कैसा भी रहे। अरे तू पागल वागल हुई है क्या? हाँ, तब से बोले जा रही है, तब समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऑफिस जाना, शांति से जाना चाहता हूँ। चुप नहीं हो सकती तू? कैसे चढ़ के आ रहे हो ना मेरे ऊपर, तो मारोगे मुझे? तो मारोगे? मारो ना, मारो मुझे। तो मेरे को ना बेफजूल प्रोवोक करने की कोशिश मत कर, मेरा हाथ उठ जाएगा तुझ पर। हाथ क्यों उठ जाएगा? तुम्हारा हाथ तो उठ गया। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। मम्मी, बेटा, बेटा क्या हुआ है? हाँ, आप देख रहे हैं, पूरी जिंदगी भर कमाया, पूरी जिंदगी भर शिक्षा ली, 12वीं पास की, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। अगर ये जिंदगी है तो फिर पाया क्या और खोया क्या? हो सकता है दोनों हाईली क्वालिफाइड ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट्स हों, दे माइट बी अर्निंग 5 lakhs per month, बट वेयर हैव वी रीच्ड? ये किस तरीके से जी रहे हैं? ये पूरे के पूरे इंटरनल रिएक्शन और रिएक्शन के साथ जी रहे हैं। आप समझ रहे हैं कहाँ पहुंचा आदमी? पहुंचना कहाँ चाहता था, ये उसका स्वभाव था, सेंटर, और पहुंच गया आजू बाजू। ये दोनों लोग यही हो सकते हैं। एक आदमी कम रिएक्शन में जी रहा है, एक आदमी ज्यादा रिएक्शन में जी रहा है ना। पहुंचे कहाँ, ये हुआ कैसे, इसको समझने की जरूरत है। तो इस स्लाइड का टेक अवे क्या है? लास्ट स्लाइड का टेक अवे बताएं। व्हाट इज द की टेक अवे फ्रॉम दिस स्लाइड? बताएं, मैं आपसे सुनना चाहूंगा। आप अपने ड्रॉप कीजिएगा मैसेज। यस, आत्मिक जी ने बोला है दैट मीन्स ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इज मच मोर दैट रिलेशनशिप, मे बी वी आर स्टिल ओपन। ये भी देखेंगे हम, धीरे धीरे निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश करेंगे कि सही समझ है तो संबंध है, समझ नहीं तो संबंध भी नहीं, है ना।
सो लैक ऑफ ट्रस्ट, देख रहे हैं, लैक ऑफ ट्रस्ट। लैक ऑफ ट्रस्ट होगा तो अपमान भी होगा, जेलसी भी होगी, केवल एक ही नहीं आएगा। मिसट्रस्ट होगा तो डिसरिस्पेक्ट भी होगा, जेलसी भी होगी, है ना, हेट भी होगा। सो फाइनली एक ही शब्द आ गया उसके लिए, ऑपोजिशन। ऑपोजिशन में जीना, है ना, ऑपोजिशन में जीना। तो क्या टेक अवे है, बताइए क्या टेक अवे है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी तक हम क्या समझ पाए। आपके सामने लिखा हुआ टेक अवे, एवरी ह्यूमन इंटेंड्स टू हार्मोनाइज विद अदर ह्यूमन बीइंग्स, है ना। ये बहुत ही की इंपॉर्टेंट की टेक अवे है कि हर एक व्यक्ति living with continuity of these feelings is naturally acceptable to every self, every human being, as it gives not only happiness but mutual happiness to every human. इसका मतलब ये जो चाहना है इन भावों के साथ जीने की, ये केवल एक व्यक्ति की नहीं है, ये 900 करोड़ लोगों की चाहना है। 9 billion people on this earth want to ensure these feelings, पर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अब उसी पे हम आने वाले हैं। ये इंटेंशन का क्वेश्चन ही नहीं है, इंटेंशन इज इंटैक्ट। क्यों? क्योंकि सबका स्वभाव है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? कॉम्पिटेंस में इशू आ रही है कि किसी की कॉम्पिटेंस कम है, किसी की ज्यादा है। तो ये इनकॉम्पिटेंस का इशू है, ना कि इंटेंशन का इशू है ना। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। आपके क्वेश्चन में देख पा रहा हूँ, तो आते हैं। जैसे किसी ने लिखा था कि जेलसी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट हेल्दी फॉर समवन। अब बताएं, आप खुद ही बताएं, क्या आप चाहेंगे कि कोई आपसे ईर्ष्या करे? अभी हम पूरी बात समझेंगे ना तो पता लगेगा कि ईर्ष्या करे का मतलब क्या है। कोई आपसे जले, है ना। इट इज हेल्दी और अनहेल्दी, ये क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है। चलते हैं हम आगे और चलते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं। तो स्लो एक्सप्लोरेशन है ये, इसलिए मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप में आगे चल रहा हूँ। अब हम थोड़ा सी ह्यूमन बीइंग को पूरा समझते हैं, तभी बात बहुत क्लियर हो पाएगी। ठीक है, चलिए ये तो बात क्लियर हो गई, तीनों भाव, है ना। जब हम इन तीनों भावों को समझ के इनमें जीते हैं, तो हम म्यूचुअल हैप्पीनेस एंश्योर करते हैं, पीस एंश्योर करते हैं, ब्लिस एंश्योर करते हैं, एक्सटेसी इंश्योर करते हैं रिलेशनशिप में। तो अपने स्वभाव में रहते हैं का मतलब इन भावों के साथ हमेशा बने रहना, संबंध में रहना, यही मेरा स्वभाव है। तो ये तीनों फीलिंग्स हैं, है ना। वैसे मैंने बताया 9 फीलिंग्स हैं, पर यहाँ हम प्रोमिनेंटली 3 फीलिंग्स की बात कर रहे हैं। और जब हम इन फीलिंग्स को एंश्योर कर पाते हैं अपने अंदर, तो सुख को एंश्योर कर पाते हैं, है ना। जब मेरे अंदर खुद के प्रति विश्वास रहता है, मैं खुद का सम्मान करता हूँ, जब मैं खुद से स्नेह करता हूँ, और इवन दूसरों के साथ भी विश्वास, सम्मान, स्नेह के साथ प्रस्तुत होता हूँ, दूसरा भी मेरे साथ विश्वास, सम्मान और स्नेह के साथ प्रस्तुत होता है, राइट। तो जब इन भावों से मैं पूर्ण भर जाता हूँ, तो हैप्पीनेस इंश्योर होती है। अब लेट मी आस्क यू कि जो फीलिंग्स हैं, ये जो मेरी चाहना है भावों की, है ना, ये एक फिजिकल नीड है या साइकोलॉजिकल नीड है, बताइए। अच्छा, you get to see if your partner cares or loves you, so that is why a little jealousy is healthy. अभी क्वेश्चन का दोबारा लेंगे, इट्स ब्यूटीफुल क्वेश्चन, है ना। अभी दोबारा लेंगे, तो आप बनाए रखिएगा, अपने जो भी आपके डाउट है बिल्कुल बनाए रखिएगा। हाँ, हेट एंड जेलिसी में क्या फर्क है? जेलिसी है ईर्ष्या, डिग्री का फर्क है केवल, है ना, डिग्री का फर्क है। सो एक्चुअली बोथ आर सिनोनिमस टू ईच अदर। हाँ, अच्छा, आप देखिए आपने इसको क्या समझा है आत्मिक जी ने। इफ somebody is jealous with you, you get a sense that you are so worthy that people are jealous of you. हो सकता है हमारी बिलीफ हो, है ना। पर क्या मैं चाहता हूं कि आप दूसरे के साथ अफेक्शन में रहना चाहता हूं या जेलसी में रहना चाहता हूं, है ना। जेलसी में वो आपका नुकसान भी कर सकता है, कोई आपकी पीठ पीछे कुछ भी कर सकता है, आपकी पॉलिटिक्स भी खेल सकता है ऑफिस में, है ना। तो क्या आप चाहेंगे कि आपके साथ कोई पॉलिटिक्स खेले? इससे पता लग जाएगा आपको। मैं ये चाहूंगा कि वो मेरे से जेलसी ना करे, लेकिन मैं मेरी प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करे। आप बताएं दोनों में से क्या चॉइसेस है, कि आपसे जले और फिर आपके साथ पॉलिटिक्स करे, या आपसे अफेक्शन करे, है ना, और साथ में अप्रिशिएट करे। क्या चॉइस? आपको साफ आपके पास आंसर आ जाएगा।
तो यह एक साइकोलॉजिकल नीड है, एक भावनात्मक नीड है। अब इसको चेक करते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस नीड है, ये टेम्परेरी नीड है। बताइए, अभी आ रहे हैं उसी, यही क्वेश्चन जो आपने लिखा ना, इसमें शायद और क्लियर हो जाएगा। ये जो आपकी विश्वास और सम्मान और स्नेह की नीड है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये टेम्परेरी है। आप चाहते हैं कि आपका सम्मान कभी कभी हो, मंडे टू सैटरडे हो, या मंडे टू संडे हो, 7 दिन हो, या 7 में से 6 दिन हो। कोई आप पे विश्वास करे, कुछ दिन करे, फिर उसके बाद ब्रेक ले ले, फिर अविश्वास करे आप पर, स्नेह करे, कुछ दिन करे, फिर ना करे। बताएं, ये कॉन्टिन्यूअस नीड है, ये टेम्परेरी नीड है? बताइए, व्हाट काइंड ऑफ नीड इज दिस? सम्मान कॉन्टिन्यूअस नीड है। हाँ, अभी अभी देखिए, आत्मिक जी लिख रहे हैं बट इट इज नॉट पॉसिबल। अभी यही तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी हमने चीजों को मान रखा है कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, मैं अभी आऊंगा, थोड़ी देर में आऊंगा उस पर। आप ये क्वेश्चन बिल्कुल बनाए रखें। आपकी चाहना क्या है, पहले तो ये बताएं। क्या आप चाहते हैं आपका हमेशा सम्मान हो, या कभी कभी आपका अपमान आपको बर्दाश्त है? ऑब्वियसली बर्दाश्त तो कर लेंगे, लेकिन क्या सहज स्वीकार है? कॉन्टिन्यूअस नीड है। घूंट घूंट तो पीना ही पड़ता है बेइज्जती का, है ना? तभी तो हम कहते हैं बेइज्जती का घूंट पी के रह गए। क्यों बोला ऐसा? क्यों? क्योंकि सम्मान मुझे हमेशा चाहिए, ऑल द टाइम। मैं कह रहा हूँ, आप सड़क पे चल रहे हैं, एक आपने गलती से गाड़ी को इधर उधर घुमा लिया, रॉन्ग साइड है, व्हाटएवर, एक दूसरा आदमी आपको घूर के देखता है, आपको उसका घूर का देखना भी पसंद नहीं है। क्यों? 2 सेकंड का केवल घूर के देखा और वापस गाड़ी चलाने लग गया, which you don't like. Why? Because you felt disrespected. He didn't utter even a single word, but you felt disrespected. You didn't feel good, isn't it? किसी का घूरना मतलब शब्द असम्मान में किसी का शब्द भी नहीं बोले, पर आपने यू फेल्ट डिसरिस्पेक्टेड। तो इसका मतलब ये मेरी कॉन्टिन्यूअस नीड है। और ये नीड आपकी है, आपको क्या लगता है कि सबकी है? क्योंकि हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, है ना? एक बच्चे के साथ भी मैं कह रहा हूँ, आप ढाबे पे जाते होंगे, ढाबे पे एक 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चे भी आप कई बार देखेंगे, है ना? आप बच्चे को जिस तरीके से बुलाते हैं हम कई बार, और मुंडू इधर आई, एक टेबल साफ कर, आपको क्या लगता है, क्या ये जो उसको सम्मान, ये जो अपमान हुआ है उसका, क्या ये उसको सहज स्वीकार है? सहज स्वीकार नहीं है। हाँ, स्वीकार कर लिया उसने। क्यों? क्योंकि उसको नौकरी करनी है। अभी क्या है, घूट पी के रह गया है, और ये उसकी एक्चुअली मजबूरी है। तो हम ये दबाव प्रभाव में इसको स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई दबाव प्रभाव ना हो तो हमें सहज स्वीकार नहीं है। इसका मतलब जब एक बच्चे को नहीं है ना, उसको भी कॉन्टिन्यूसली रिस्पेक्ट चाहिए। क्यों? वो बच्चा नहीं है, वो एक ह्यूमन बीइंग है ना? हम किसी आदमी की पहचान उसके शरीर से करते हैं, उसकी एज से करते हैं, उसके सेक्स से करते हैं, है ना? यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो कॉन्टिन्यूअस है। दूसरा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ये लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? सम्मान, विश्वास या स्नेह। लेट अस सपोज सुबह किसी दिन आपकी बहुत अप्रिसिएशन मिला कॉलेज में, तो आपने पेरेंट्स को कहा, पापा आज मेरा अपमान करो, सुबह मेरा आज तो पेट भरा हुआ है। जैसे हम रोटी जब खाते हैं ना, तो शाम का ब्रेक ले लेते हैं कि पापा आप जो मर्जी बोलो, जैसे मर्जी मेरे से पेश आओ, क्योंकि आज सुबह बहुत टीचर्स ने सम्मान किया मेरा, बहुत बड़े अवार्ड मिले हैं मुझे। आप बताइए, अनलिमिटेड है या लिमिटेड है? ये उसका आंसर देगा, ये जो मैंने आपसे बात बोला। हाँ, अभी आते हैं आत्मिक जी। बेस्ट थिंग इज नॉट टू एक्सपेक्ट और हैव लो एक्सपेक्टेशन। ये दोनों ही बातें में करेक्शन चाहिए, मैं भी उस पर आ रहा हूँ धीरे धीरे। हाँ, बताइए, व्हेन वी टॉक अबाउट इट, जेलेसी कैन स्ट्रेंथन अवर रिलेशनशिप, द की इज हेल्दी कम्युनिकेशन। हाँ, देखिए, हेल्दी कम्युनिकेशन है तो जेलेसी नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब, एक्चुअली हेल्दी कम्युनिकेशन का मतलब तीनों भाव का होना है, परिपूर्ण होना है। अगर हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं है, अनहेल्दी है, इसका मतलब उनमें से या तो एक कोई भी एलिमेंट मिसिंग है, जेलसी आ गई है उसमें, तो फिर हेल्दी का होगा। तो या तो हेल्दी हो सकता है या अनहेल्दी हो सकता है। अनहेल्दी में आपका जेलसी आ रही है, हेल्दी में आपका अफेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा इसको समझते हैं तो आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो ये कॉन्टिन्यूसली है या अनलिमिटेड है? तो आप देखेंगे कि ये तीनों कहना तो फॉरवर्ड ही कर दूं, तुम आराम से कर लोगे। और निरंतर है और अनलिमिटेड है। तो फॉरवर्ड ही कर दूं, तो हमने आराम से कर लेना। 7 तारीख का भी है, ई का भी है। आप
आप कुछ अगर बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें आप मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज माइक को म्यूट कर दीजिए। सो हम देखेंगे कि ये जो हैप्पीनेस है, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन के भावों से जो आ रही है ना, ये भाव कॉन्टिन्यूसली रिक्वायर्ड है, अनलिमिटेड है और क्वालिटेटिव नेचर में है ना, ये क्वांटिटेटिव नहीं है, ये क्वालिटेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ हमारी ये जो नीड है, ये साइकोलॉजिकल नीड है तीनों भावों की। एक तरह की हमारी नीड और भी है, बताएं क्या, जिसके बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं, बताइए। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, when we expect something and don't get, we tend to get disappointed and we tend to become unhappy. this is यही तो हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, यही तो हमारा अल्टीमेट एंड ऑब्जेक्टिव यही है जो आपने बात लिखी है, कि ऐसा संभव है कि जब मुझे ना मिले वो चीज तो भी मैं दुखी ना हूं। बताइए, क्या आप चाहते हैं, आप डिसअपॉइंट होना चाहते हैं किसी भी परिस्थिति या स्थिति में? आप अनहैप्पी होना चाहते हैं? चाहना क्या है आपकी, हो जा रहे हैं वो अलग बात है, चाहना क्या है? अगर मैं आपको कहूं दो चॉइस हो कि व्हाट मे कम, वॉट एवर बी द सर्कमस्टेंसेज आउटसाइड, वॉट एवर बी द सिचुएशन ऑफ द अदर पर्सन, सो फॉर हिज कॉम्पिटेंस इज कंसर्न, वो हो सकता है पुअर कॉम्पिटेंस का आदमी हो, चीख के बात करता हो, चिल्ला के बात करता हो, अपमान करके बात करता हो, क्या मैं दुखी होना चाहता हूं कि नहीं? अगर नहीं तो वैल्यू एजुकेशन को समझना पड़ेगा। अगर आप दुखी होना चाहते हैं, इट इज योर चॉइस, है ना। यही तो हम बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे ऐसे जिन्होंने पूरे अवेयरनेस, जिसने पूरे हॉलिस्टिकली जो अवेयर हो गए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरीके से उनके साथ प्रस्तुत हो रहे हो, लेकिन वो फिर भी रिसिप्रोकेट कर रहे हैं और फिर भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हमने पहली स्लाइड में बात की थी, तो धीरे धीरे आप उनके मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे आपको टीचर्स मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, है ना। तो इसी बात को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बताइए क्या क्वेश्चन था? एक तरह की हमारी नीड है साइकोलॉजिकल नीड, भावों की नीड, जो निरंतर है, जो अनलिमिटेड है, जो क्वालिटेटिव है। एक तरह की हमारी नीड और है, बताइए क्या नीड है हमारी? दूसरी तरह की हमारी नीड है फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टरिंग। इसमें मैंने एक चीज़ और ऐड की, इक्विपमेंट्स। फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टरिंग एक समय पे हम बात करते थे, रोटी, कपड़ा और मकान, पर आज हमें मोबाइल फ़ोन भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, है ना, मोबाइल फ़ोन भी, आईफोन चाहिए, है ना। तो अब हमें इक्विपमेंट्स भी चाहिए, इंटरनेट भी चाहिए, लैपटॉप भी चाहिए। तो एक तरह की हमारी एक नीड ये है ना। बट व्हाट वी हैव बीन हियरिंग दैट दिस इज अवर बेसिक नीड। तो उसको चेक कर लेते हैं, ये बेसिक है या साइकोलॉजिकल नीड बेसिक है? कैसे बताएंगे कि बेसिक नीड कौन सी है ना? तो ये तीनों जो नीड है, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टरिंग एंड इक्विपमेंट्स, ये एक तरह की सुविधा है, ये कन्वीनियंस है ना। बताएं, ये एक साइकोलॉजिकल नीड है या फिजिकल नीड है? बताइए, बताइए किस तरह की नीड है? साइकोलॉजिकल नीड है या फिजिकल नीड है? देखिए, पूरा का पूरा प्रोग्राम सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे बेस्ड है। हमारी जो अभी तक की पूरी प्रैक्टिस रही है, पूरा अभ्यास रहा है अपनी खुशी को बाहर ढूंढने का। वैल्यू एजुकेशन कहता है कि एक बार आप अंदर आके देखो, अपने अंदर जाके देखो, एक्सप्लोर करके देखो, तो आपको पता लगेगा कि आपका सुख कहीं और है। देख हम कहीं रहे हैं, चीज़ ढूंढ कहीं रहे हैं, और चीज़ कहीं और छुपी पड़ी है ना। इसलिए वैल्यू एजुकेशन कहता है, मैस्लो की नीड का जिक्र हुआ है, यहाँ पे मैस्लो की नीड आ रही है ना। अभी बहुत बढ़िया बात इन्होंने छेड़ी है मैस्लो की नीड का। बेसिक नीड इज ए नीड थ्रू विच यू आर एबल टू सेटिस्फाई योर नीड्स एंड वांट्स। अब व्हाट एवर अवर नीड्स, मेरी दो तरह की नीड्स निकल के आ रही है, साइकोलॉजिकल नीड और साइकोलॉजिकल नीड, साइकोलॉजिकल नीड एंड फिजिकल नीड। और हमने देखा ये जो फिजिकल, जो ये साइकोलॉजिकल नीड है, ये एक बच्चे की भी नीड है, एक बच्चे को भी सम्मान चाहिए। लेकिन मैस्लो साहब ने क्या कहा, जो मैं समझा, हो सकता है कि मेरा इंटरप्रिटेशन गलत हो, मैस्लो साहब ने एक पिरामिड बना के आपको दिया, है ना। उस पे सबसे नीचे आपके फिजियोलॉजिकल नीड, सिक्योरिटी, सेफ्टी, और उसके बाद आपके सम्मान, रिस्पेक्ट, और उसके बाद सेल्फ एक्चुलेशन, वो पिरामिड में बात की जाती है। पर यहाँ तो हमने देखा है 5 साल के बच्चे को भी सम्मान चाहिए, लेकिन हमने क्या मान लिया मैस्लो साहब के हिसाब से कि बड़ों को सम्मान चाहिए, कि जब बड़ा आदमी होता है, शरीर से बड़ा होता है, तभी सम्मान चाहिए।
अब उसकी वजह से क्या हुआ, मानो मैंने बच्चे को सम्मान नहीं दिया, तो मेरा उससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, एंड इट लीड्स टू नथिंग बट जनरेशन गैप। लेकिन हम तो जुड़ना चाहते हैं, दूसरे आदमी के साथ हार्मोनाइज करना चाहते हैं, लेकिन किसी थ्योरी को जो हमारे सामने दी गई, अगर मैंने उसको ठीक तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया, है ना, सो इट माइट डू लॉट ऑफ हार्म देन गुड। वो पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन को हार्म कर सकती है। इसलिए ह्यूमन वैल्यू एजुकेशन देखिए बहुत ही कैटेगरिकली कहता है कि जो आप सुनते हैं आप कभी उसको वेरीफाई करते हैं। इसलिए आप याद कीजिएगा सेकंड स्लाइड में मैंने एक बात रही थी कि आपको हर चीज को वेरीफाई करना है। वॉट एवर इज बीइंग प्रपोज्ड टू यू, यू नीड टू वेरीफाई इट। यू आर नॉट सपोज्ड टू एग्री विद मी, बिकॉज दैट इज द प्रॉब्लम विद ह्यूमन सिविलाइजेशन। वी हैव बीन लिसनिंग टू समथिंग एंड वी हैव बीन एग्रीइंग टू इट विदाउट वेरीफाइंग। हो सकता है वो चीज जो मैं जिस चीज को मान रहा हूँ वो बहुत ही खतरनाक चीज हो मेरे लिए, मेरे सुख के लिए, मेरी निरंतरता उसमें पॉसिबल हो सकता है ना हो। मेरी निरंतरता क्या हो सकता है, उस जो मेरी मान्यता है वो दूसरों को भी दुखी करे, है ना। तो यही ह्यूमन वैल्यू एजुकेशन ये कहता है कि वेरीफाई कीजिए, हर चीज को वेरीफाई कीजिए, दोबारा से देखिए, हर एंगल से देखिए। क्यों? क्योंकि आपकी एक एक मान्यता आपके विचारों को गवर्न कर रही है, आपकी इच्छाओं को गवर्न कर रही है, आपकी आशाओं को गवर्न कर रही है ना। आपकी थॉट, एक्सपेक्टेशन, डिजायर, एवरीथिंग इज बीइंग गवर्न्ड बाय माय बिलीफ सिस्टम which I assume to be true, जिसको मैंने कभी चेक ही नहीं किया, वेरीफाई ही नहीं किया। तो हाँ, अभी आते हैं आत्मिक जी, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं इसको ना पूरी स्लाइड को खत्म करता हूँ, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन मैं दोबारा सुनना चाहूंगा जो भी आपने लिखे हैं अभी। यू वांट अ स्मार्टफोन, यू शुड बी सेटिस्फाइड विद नो मोबाइल एंड नॉट नेसेसरी। नो, मैं ये कह नहीं रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आईफोन ना लीजिए। अभी पूरी बात करते हैं ना, पूरी बात करने के बाद आप वेरीफाई कर पाएंगे इस बात को। वैल्यू एजुकेशन कहते हैं नीड बेस्ड। आपको एक आईफोन क्या, आपको 10 आईफोन चाहिए, आप 10 आईफोन लो। आपके पास ऐसा काम है, आप एक एंटरप्रेन्योर हो और आपका काम सारा आईफोन पे डिपेंडेंट है। पर अगर मैं आईफोन को केवल सम्मान पाने के लिए लेता हूँ तो आईफोन आपको सम्मान नहीं देगा। अब आप देख लीजिए कि मैं आईफोन या महंगे कपड़े या महंगी गाड़ी, ये उनके उनके यूज के लिए ले रहा हूँ, राइट यूटिलाइजेशन के लिए, या सम्मान पाने के लिए ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आईफोन में सम्मान दिलवाने की आपको क्षमता ही नहीं है। आईफोन आपको अटेंशन तो दिला सकता है, इसलिए कह रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं अपने अंदर जाके अवेयरनेस के साथ आप डिसाइड करेंगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ, है ना, मैं क्यों खरीद रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ एक एक चीज। सो एवरीथिंग विल बी कैलिब्रेटेड। Now it is quite likely that you don't make any errors in life, and because there are certain errors in life because which our life is shattered, you know। एक छोटा सा डिसीजन हमारी लाइफ को शैटर कर सकता है। ये तो छोटे, चलो थोड़ा सा अगर 90-1 लाख की नुकसान की बात है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको और समझने की कोशिश करते हैं, पूरी इसको टोटलिटी में समझते हैं। सो ये एक साइकोलॉजिकल फिजिकल नीड है, ये बात क्लियर हो रही है हमारी, है ना। ये जितनी भी सुविधाएं ये हमारी फिजिकल नीड है। अब आप इसको चेक कीजिए कि ये एक फिजिकल नीड है। अभी 2 तरह की आपके पास नीड आ गई हैं। इसको भी चेक कर लेते हैं कि कॉन्टिन्यूस है या टेम्परेरी है। ये जो फूड आया है, फूड आपकी नीड जो कॉन्टिन्यूस है या टेम्परेरी है। आप बताएं, फूड आप जब भूख लगती है तब चाहिए खाते हैं या बिना भूख के खाते रहते हैं? जैसे गाय जुगाली करती है ना। तो क्या हम भूख लगने पे खाना खाते हैं या बिना भूख के खाते रहते हैं? कई बार खा भी सकते हैं बिना भूख के, लेकिन कब तक, थोड़ा सा खा लेते हैं, है ना। लेकिन बट इट इज अगेन इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इज इट? थिंक अबाउट इट, बताइए, सोचिए इस बारे में कि जो फूड है, जैसे हमारी जो नीड निकल के आई, विश्वास की, सम्मान की, स्नेह की, वो कॉन्टिन्यूअस है, अनलिमिटेड है, क्वालिटेटिव है, भावनात्मक है। इसी तरह फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो कॉन्टिन्यूअस है या टेम्परेरी है? टेम्परेरी का मतलब व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड, है ना, एंड लिमिटेड ऑल्सो, है ना। भाई एक बार में कितनी रोटी खाएंगे? 2, 3, 4, जिसका शरीर बड़ा है वो 8 खा जाएगा, है ना। एंड इट इज ऑल्सो क्वांटिटेटिव इन नेचर, आप यू कैन क्वांटिफाई इट, है ना। लिमिटेड भी है, क्वांटिफाइड भी है ना, क्वांटिटेटिव भी है एंड टेम्परेरी भी है। ये बात क्लियर हो पा रही है? ये बात ठीक ठीक रख पा रहा हूँ मैं? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो
दो तरह की नीड्स हैं, एक साइकोलॉजिकल नीड है जो कॉन्टिन्यूस अनलिमिटेड और क्वालिटेटिव है, दूसरी तरह की फिजिकल नीड है जो टेम्परेरी है, लिमिटेड और क्वांटिटेटिव है। है ना? इसका मतलब ये हुआ, अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी बेसिक नीड कौन सी है। द मोस्ट बेसिक नीड, बेसिक नीड की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? बेसिक नीड की डेफिनेशन वो होनी चाहिए जो कॉन्टिन्यूस हो, जो अनलिमिटेड हो और जो क्वालिटेटिव हो। ये सेकंड बेसिक है। फूड, क्लोथिंग, शेल्टरिंग, इट इज ऑल्सो बेसिक बट इट इज सेकंड बेसिक। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टरिंग। आप एक सोते हुए व्यक्ति से भी पूछेंगे ना आपकी बेसिक नीड क्या है, उसने रट रखा है रोटी, कपड़ा और मकान। पर यहाँ हम देख रहे हैं कि विश्वास, सम्मान, स्नेह के बिना तो मेरा एक एक पल भी मैं नहीं बिता सकता, है ना? अगर मुझे पता लग जाए कि कल स्कूल में, कॉलेज में या किसी जगह पे जहाँ मैं मेहमान हूँ, कल मेरे सम्मान की धज्जियां उड़ने वाली हैं, है ना, नींद गायब हो जाएगी, है ना, आदमी की हार्ट बीट बढ़ जाएगी, सांसों की गति तेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूसली रिक्वायर्ड है ये। आप देख पा रहे हैं? तो हमारी दो तरह की नीड्स हैं जिसमें प्रोमिनेंट नीड है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इसका मतलब हमारी दो तरह की नीड्स हैं। एक है साइकोलॉजिकल नीड जो पूरी तरीके से नॉन फिजिकल है, और दूसरी नीड है फिजिकल नीड, है ना? सो नॉन फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल आपके सामने ही है। इसका मतलब ह्यूमन को अगर हम देखें, फूड, क्लोथिंग, शेल्टरिंग, इक्विपमेंट, ये हमारे शरीर की नीड है, मटेरियल एंटिटी की नीड है, जड़ इकाई की नीड है। अब मैं अगर आपसे पूछूं विश्वास, सम्मान, स्नेह, ये किसकी जरूरत है? ये शरीर के कौन से भाग को चाहिए? आंख को चाहिए, कान को चाहिए, किडनी को चाहिए, पैर को चाहिए, लंग्स को चाहिए, ब्रेन को चाहिए? विश्वास, सम्मान, स्नेह किसको चाहिए बताइए? व्हाट डू यू थिंक? किसकी नीड है ये? देखिए पूरा का पूरा प्रोग्राम ना एक्साइटमेंट पे बेस्ड नहीं है। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम अंदर जाके कुछ चीज़ों को जांचने का है, कुछ चीज़ों को हमारे अंदर जो एम्बेड कर दिया गया है ना, हो सकता है हमें रियलिटी से दूर ले जाया गया हो, जिसकी वजह से जो पहली स्लाइड में आपने देखा था, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना भी है अभी तक कि निरंतर तो सुख संभव नहीं है, बिकॉज वी हैव बीन मेड टू बिलीव दैट इट इज नॉट पॉसिबल। बाय बिकॉज वी हैव बेस्ड अवर हैप्पीनेस on the needs, on the fulfillment of needs of body। है ना? हमें ऐसा महसूस करा दिया गया है, ऐसा विश्वास करा दिया गया है कि आपकी जब बॉडी की नीड्स पूरी होंगी, फूड, क्लोथिंग, शेल्टरिंग, इक्विपमेंट की, तभी आप सुखी हो सकते हो, वरना सुख पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है। चेक कीजिएगा, कीप चेकिंग इट, कीप एक्सप्लोरिंग इट, व्हाटएवर इज बीइंग प्रपोज्ड टू यू। तो क्वेश्चन क्या आया है अभी आपके सामने कि विश्वास, सम्मान, स्नेह, बॉडी के कौन से पार्ट की जरूरत है? बताइए, मैं आंसर देखता हूं, क्या आंसर आया आप लोगों का? बताइए। आप मुझे सुन पा रहे हैं? ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ पूरी तरीके से। आई एम क्लियरली ऑडिबल टू यू। हार्ट, माइंड की नीड है, दिल की नीड है, दिल की नीड है, दिल की नीड है। विश्वास, सम्मान, स्नेह मेरे दिल की नीड है। दिल का काम तो पंप करना है ब्लड को, प्योरिफिकेशन का काम है उसका तो बेचारे का, दिल का। दिल को तो हम ऐसे ही बदनाम करके बैठे हुए हैं। देखिए, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ये नॉन फिजिकल एलिमेंट्स हैं। ये तो आप ठीक ठीक देख पा रहे हैं। भाव क्या है? नॉन फिजिकल है। कैसे पता लगेगा? क्या आपको दुकान पे मिलेगा विश्वास, सम्मान, स्नेह कि मेरे माता पिता मेरा सम्मान नहीं करते, मेरी वाइफ मेरा सम्मान नहीं करती, स्नेह नहीं करती, मुझ पे विश्वास नहीं करती? तो आप केमिस्ट से जाके कैप्सूल ले आइएगा अगर मिलते हो, है ना, पेरेंट्स के लिए, नेबर्स के लिए, टीचर्स के लिए, है ना, लेकिन वो नहीं मिलेंगे आप। इससे क्या पता लग रहा है? ये नॉन फिजिकल एंटिटी है। तो नॉन फिजिकल जो एंटिटी है, ये, इसका मतलब ये किसकी नीड है? ये भी एक नॉन फिजिकल एंटिटी की नीड है। जैसे कि फूड एक फिजिकल एंटिटी है, ये किसकी नीड है? बॉडी जो एक फिजिकल एंटिटी है, एक जड़ इकाई है ना? क्लोथिंग किसकी नीड है? बॉडी की नीड है, बॉडी को सुरक्षा चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, है ना? इसी तरीके से हम दूसरे एंड पे जब देखते हैं तो ये देखते हैं कि विश्वास, सम्मान, स्नेह ये नॉन फिजिकल है। इसका मतलब ये किसकी नीड है? ये एक नॉन फिजिकल एलिमेंट है
उसकी नीड है जिसको बोला गया है कॉन्शियस एंटिटी, चेतन इकाई, मन, जीवन, माइंड, कुछ भी कह लीजिए इसको। तो इसको क्या कहेंगे? ये मेरी नीड है, आई मेरी नीड है, सेल्फ की नीड है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि मानव, ह्यूमन बीइंग इज को एग्जिस्टेंस ऑफ टू एंटिटीज। वन इज आई, मैं, और दूसरा मेरा शरीर। इसका मतलब मैं और शरीर ये दो अलग अलग चीजें हैं। मैं और शरीर ये दो अलग अलग चीजें हैं। मन एक चेतन इकाई है ना, एक कॉन्शियस एंटिटी है, और जड़ एक शरीर, एक 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 जो आपका शरीर है, जो बॉडी है, वो एक जड़ इकाई है, मटेरियल से बनी हुई है। और इसी बॉडी में ये 5 सेंसेस हैं। ये जो हम फूड को एंजॉय करते हैं, ये सेंसेस से एंजॉय करते हैं, जो देखते हैं, है ना, बाहर की चीज़ों को, फिजिकल फैसिलिटी को जो कंज्यूम करते हैं, है ना, खाना पीना आपका टेस्ट बड से हम सेंस करते हैं, है ना, बाहर की आवाज़ों को ईयर से सुनते हैं, है ना, उसको महसूस करते हैं। तो सेंसेस के थ्रू हम ये बाहर की जितनी भी कन्वीनियंस है उनको भोगते हैं, और ये सब बॉडी में ही है। ये सेंसेस किसका पार्ट है? ये बॉडी का पार्ट है। हार्ट बॉडी का पार्ट है। इसका मतलब ह्यूमन बीइंग इज ए को एग्जिस्टेंस ऑफ टू एंटिटीज, मैं और शरीर, मैं और शरीर, आई एंड बॉडी। संबंध किसके बीच है? शरीर का शरीर से संबंध है या मैं का मैं से संबंध है? बताइए, संबंध किसका होता है? पहली स्लाइड में हमने बात किया था संबंध की। संबंध किसका है? शरीर का शरीर का, या शरीर मैं का मैं से? माइंड टू माइंड। संबंध है एक चेतन इकाई का दूसरे इकाई से। ये बात क्लियर है? अब ये क्या निकल के आ रहा है? क्रक्स क्या निकल के आया है? बॉडी की नीड्स फिजिकल फैसिलिटी है। बॉडी की नीड्स फिजिकल फैसिलिटी है। रोटी, कपड़ा और मकान, इक्विपमेंट, ये बॉडी की नीड है जिसको हम सेंसेस के थ्रू कंज्यूम करते हैं, है ना। इसी तरह से मेरी नीड, सेल्फ की नीड, सेल्फ कौन? चेतन इकाई। इसकी नीड क्या है? भाव है, और जिससे मुझे सुख मिलता है। यहाँ दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कैटेगराइज हो रही हैं, डिफरेंट कैटेगरी में हो रही हैं, कि मैं ह्यूमन संयुक्त रूप हूं दो एंटिटीज का, मैं और शरीर, सेल्फ और बॉडी। ठीक है। सेल्फ की नीड है भाव, जिससे मुझे सुख मिलता है। जब शरीर की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, है ना, तो सुविधा है। एक गाड़ी ले ली, एक एसी लगा लिया, है ना, आईफोन ले लिया, वो एक सुविधा है ना। अब हमने क्या मान रखा है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने सुख किसको मान रखा है? अब इसको आगे चलते हैं। अब ये दो अलग अलग तरह की नीड्स हैं या एक ही तरह की नीड्स हैं? बताइए। भाव और फिजिकल फैसिलिटी, फीलिंग्स एंड फिजिकल फैसिलिटी, ये दो अलग अलग तरह की नीड्स हैं, ये एक ही तरह की नीड है? अब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अब ठीक है मेरी आवाज? हो सकता है किसी को, किसी के कनेक्शन में प्रॉब्लम हो तो हो सकता है गायब हो जाएगी। बताइए। शिवम जी कह रहे हैं मेरी आवाज नहीं आ रही है, बाकी उन लोगों को आ रही है? ठीक, वेरी नाइस। बॉडी कीप्स ऑन रनिंग 24/7 बट फॉर सेल्फ, but it does not runs, especially your consciousness. When you are asleep you get into unconsciousness, but body still runs. Very nice, good 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 good। ठीक है, अभी आता हूँ आपकी बात पे आत्मिक जी। इसको पूरा समझ लेंगे तो आपका फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन आपका मैंने रख लिया है दिमाग में। हाँ, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग तरह की नीड्स हैं। एक भाव की नीड है ना, दूसरी भौतिक वस्तुओं की नीड है। दूसरा क्वेश्चन, हैप्पीनेस इज द नीड ऑफ विच एंटिटी? सुख किसकी नीड है? मेरी या शरीर की? सेल्फ और बॉडी, सुख किसकी नीड है? बताइए, सुख किसकी नीड है? यस, सोल भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं सोल वर्ड यानी उसको यूज नहीं करना चाह रहा था, आप सोल यूज कर लीजिए, एब्सोल्युटली नो इशू। बात तो देखिए समझने की है ना। एक्स कह लीजिए, वाई कह लीजिए, आई को एक्स कह लीजिए, बॉडी को वाई कह लीजिए, उसको सोल कह लीजिए, है ना।
तो चेतना, अभी मैं फिर भी थोड़ा सा इस पे थोड़ी लाइट डाल दूंगा कि हम सोल कब बोलते हैं इसको। सो हैप्पीनेस किसकी नीड है? वो सेल्फ की नीड है, चेतन इकाई की नीड है। तीसरा क्वेश्चन, इसमें प्राइमरी कौन है? हु इज द प्राइमरी एंटिटी? प्राइमरी एंटिटी का मतलब डिसीजन मेकर कौन है, कंट्रोलर कौन है ना, ड्राइवर कौन है? मैं शरीर को चलाता है या शरीर मैं को चलाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखिए हम धीरे धीरे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तेजी से इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि जितना भी हम समझे उसको बहुत गहराई में जाके समझे। इसलिए मैं आई एम नॉट हियर टू जस्ट टू पास टाइम, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग। आई वांट दैट इट शुड गेट डाउन टू द बेसिक्स, हमारे बेसिक्स क्लियर हो जाए किसी तरीके से। तो अब जो भी मैं काम करूंगा ना वो बहुत ही खूबसूरती के साथ करूंगा। वट एवर वर्क आई बीन असाइन्ड विद, आई डू इट विथ होल हार्ट। दैट्स द पर्पस ऑफ शेयरिंग इट। बताइए, माइंड इज द बॉस। माइंड अब देखिए, आपकी सेल्फ ने डिसाइड किया कि आपको ये वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए, है ना? आपका डिसीजन था। किसका? सेल्फ का डिसीजन है, आई का डिसीजन है, जीवन का डिसीजन है, मन का डिसीजन है। लेकिन ये पूरा कैसे होगा? ये बॉडी के थ्रू पूरा होगा। आप जो मुझे सुन पा रहे हैं वो कान से सुन पा रहे हैं, सेंसेस से सुन पा रहे हैं, ईयर से सुन पा रहे हैं, है ना? लेकिन डिसीजन आपका ही है। आप अभी तुरंत अगर आप डिसाइड कर लें कि मुझे आपको नहीं सुनना, तो आप कानों में लगा। सर जो आपने फाइनल भेजा ना कॉन्ग्रेचुलेशन वाला अवार्ड वाला, उसमें सर ने ये भी लाइन ऐड करवाई थी ना, एज हेलो, किसी का माइक अनम्यूट हो गया है। तो क्या बात हम कर पाए? हाँ, अगर आप चाहे तुरंत, तो इफ यू टेक डिसीजन दैट आई वांट टू लिसन टू यू, सो इवन इफ योर headphones are on your ears, you can stop listening to me. You stop paying, you start thinking of something else. आप मेंटल फ्लाइट पकड़ के बाहर जा सकते हैं तुरंत, क्योंकि आपका डिसीजन है सेल्फ का कि मुझे आपको नहीं सुनना। कान पे अभी भी कानों में मेरी आवाज, मेरी आवाज आपके कानों में अभी भी आ रही है, लेकिन आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर रहे, सुन के भी अनसुना कर रहे हैं। तो इसका मतलब डिसीजन किसका हुआ? सेल्फ का डिसीजन है। यहाँ बॉडी का डिसीजन नहीं है। कानों को तो आवाज सुनाई दे रही है मेरी, लेकिन आप उसको इंटरप्रेट कर बंद कर दिया आपने। तो प्राइमरी एंटिटी कौन है? मैं हूं, है ना? ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसकी नीड प्रोमिनेंट है, किसकी नीड ज्यादा प्रोमिनेंट है? आप देखिए यहाँ पे प्रायोरिटी आ रही है, किसकी नीड प्रायर है, सेल्फ की या बॉडी की? अब आप बताइए, जैसे कि गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर, बताइए गाड़ी इंपॉर्टेंट है या ड्राइवर इंपॉर्टेंट है? वो इंपॉर्टेंट है जो जिसको ड्राइव कर रहा है, जो जिसका मालिक है। मैं ड्राइवर, गाड़ी का मालिक हूं, isn't it? I am driving the car. Car does not decide which direction to move to. कार डिसाइड नहीं करती है, मैं डिसाइड करता हूँ कि गाड़ी को कौन सी डायरेक्शन में ले जाना है। अगर गाड़ी डिसाइड करती तो वो हमेशा वो पक्की सड़क पे जाती। मैंने डिसाइड किया नहीं, गाड़ी को कच्ची रोड पे उतारना है, चाहे धूल भरी रोड क्यों ना हो। इट इज माई डिसीजन। सो बॉडी इज माई कार, isn't it? Body is my facility, body is my car. I am the driver. मैं डिसाइड करूंगा कि बॉडी का सदुपयोग होगा या दुरुपयोग होगा। बताइए किसकी नीड ज्यादा प्रोमिनेंट है? प्रोमिनेंट किसकी नीड है? भावों की नीड ज्यादा प्रोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, अनलिमिटेड है, क्वालिटेटिव है, isn't it? Think about it, है ना? So it is the right priority order. ये राइट प्रायोरिटी ऑर्डर है। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो पा रही है? ये राइट प्रायोरिटी ऑर्डर है। पहला, सेल्फ की नीड पूरी हो, ये हवा है, ये सब पानी है, पहले हवा, है ना? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप बताएं, फूड आपके सामने है ना? आप फूड्स, दो व्यक्ति हैं, एक फूड दे रहा है, बहुत डिलीशियस फूड दे रहा है, लेकिन सम्मान के साथ नहीं दे रहा, है ना? और दूसरा आपका मेहमान है, दूसरा आपका होस्ट है, व्हाटएवर, कोई भी हो सकता है। वो आपको फूड भी दे रहा है और फूड सम्मान के साथ दे रहा है, लेकिन उसका फूड इतना डिलीशियस नहीं है, इतना ज्यादा क्वांटिटी में भी नहीं है। बताएं आप किसका फूड एक्सेप्ट करेंगे? सम्मान के साथ खाना या बिना सम्मान के बहुत सारा और डिलीशियस फूड? व्हाट इज योर चॉइस? बताइए। आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं आत्मिक जी आपकी बात पे।
बताइए क्या चॉइस, क्या चूज करेंगे आप, सम्मान के साथ खाना या अपमान के साथ खाना? कैन थिंक अबाउट इट। सो आंसर क्या आता है कि सेल्फ की नीड आर मोर प्रोमिनेंट। अब यहाँ पे आत्मिक जी की बात से एक और बात क्लियर होती है कि देखिए, जब ये बात मुझे समझ में आती है कि मैं ड्राइवर हूँ और बॉडी है ना, मेरा एक वाहन है। बॉडी को कौन कैरी कर रहा है? सेल्फ को कौन कैरी कर रहा है? बॉडी कैरी कर रही है ना। बॉडी मेरा वाहन है। अब आकांक्षाएं किसकी हैं? मुझे एमबीए करना है, मुझे मैनेजमेंट ग्रेजुएट बनना है, मुझे सीईओ बनना है, मुझे अपने फैमिली को सक्षम बनाना है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है। ये आपकी नीड है या आपके शरीर की नीड है? आकांक्षाएं किसकी हैं, मैं की या शरीर की? कीप थिंकिंग अबाउट इट। किसकी जरूरत है ये आपकी जरूरत है, मेरी जरूरत है, सेल्फ की जरूरत है, जीवन की जरूरत है, चेतन इकाई की जरूरत है ना। ये चेतन इकाई की नीड है, लेकिन ये पूरी कैसे होगी? ये आपकी बॉडी के माध्यम से होगी। बॉडी इसका वाहन है। ये बात क्लियर हो रही है? सेल्फ को बॉडी चाहिए अपने कामों को पूरा करने के लिए। तो क्या हुआ कि आपको जाना है 500 किलोमीटर दूर, आपको कार चाहिए कि नहीं चाहिए? यू नीड ए व्हीकल, but your vehicle must be very sound, isn't it? Your vehicle must be very sound because you, आपको जो अपने सेल्फ की आकांक्षाओं को पूरी करना है, उसकी निरंतर सुखी होने के लिए आपका बॉडी एक वाहन है, आपकी बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है। इट हैज टू बी परफेक्टली ऑल राइट ऑल द टाइम, इट हैज टू बी वेरी हेल्दी ऑल द टाइम। इसका क्या मतलब हुआ? मेरी बॉडी मेरी जिम्मेदारी है, इसको ठीक रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द वे आई टेक केयर ऑफ माई कार, द वे आई टेक केयर ऑफ माई बाइक, इट इज सिमिलरली आई एम सपोज टू टेक केयर ऑफ माई बॉडी द वे आई टेक केयर ऑफ माई कार और व्हीकल और माई टू व्हीलर। कि मैं बॉडी को स्वस्थ कैसे रखूं, उसको क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, रात को कितने बजे तक जगाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी है पूरी तरीके से। क्योंकि आपकी सारी आकांक्षाएं अधूरी रह जाएंगी अगर आपका शरीर अस्वस्थ हो गया तो। ये बात क्लियर है? और इसे ही कहते हैं संयम का भाव। एक और भाव आता है संयम। क्या हुआ? मैं की जिम्मेदारी शरीर के प्रति, यह है संयम का भाव, है ना। ये बात क्लियर हो रही है? अब ये बात तो क्लियर हो रही है कि सुखी होना कौन चाहता है? मैं सुखी होना चाहता हूं, है ना। बॉडी का सुख केवल इतना है कि उसको सही खाना पीना मिलता रहे, प्रोटेक्शन मिल जाए, फूड मिल जाए टाइम पे। लेकिन डिसाइड तो मैं ही करूंगा ना कि फूड क्या देना है। बताइए, ये बॉडी अपने आप डिसाइड कर लेगी? आपका मन करता है ना। बॉडी का मैं का मन करता है खाने का रसगुल्ला या आपकी जीभ का मन करता है? मैं का मन करता है। Sorry to interrupt, Pankaj sir. जी जी। Yeah, we are left with another 15 minutes, अच्छा, and would also inform students if in case they have any query, we can ठीक है ठीक है, have हाँ, query question answer round of 10 minutes, so they ठीक can है। write their queries in the chat Let me move box. very fast now because the fundamental concepts are clear about self awareness. So अब थोड़ा तेजी से चलते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा धीरे इसलिए चल रहा था। अब इसको देखते हैं हैप्पीनेस कहाँ से जुड़ी हुई है। मेरा प्रोग्राम क्या है हैप्पीनेस को अचीव करने का? अब ये देखिए साफ साफ क्लियर हो रहा है, ये प्रोग्राम बॉडी का नहीं है, ये प्रोग्राम आई का है, ये सेल्फ का है, हैप्पी होने का। क्योंकि हैप्पी किसको होना है? किसको होना है? मैं को होना है ना। तो एक तो हैप्पीनेस का प्रोग्राम हो गया कि शरीर सुखी रहेगा। शरीर का सुखी होने का एग्जैक्टली मतलब है शरीर का हेल्दी होना, तो मैं सुखी होऊंगा। ये बात क्लियर हो गई। दूसरे सोर्सेस क्या है हैप्पीनेस के लिए, हैप्पीनेस को पाने के लिए? बताइए क्या है? थिंक अबाउट इट, है ना। साकेत जी अभी देखिए, अभी ना हम अपने को फोकस कर रहे हैं। देखिए हमारी ये बहुत बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, हम बाहर चले जाते हैं, दूसरों के बारे में बात करने लगते हैं। क्योंकि 2 घंटे में हम केवल अपने को अवेयर कर पाए, मैं अब खुद अवेयर हो पाया, है ना। तो इसलिए पूरा का पूरा 2 घंटे मैंने केवल सेल्फ अवेयरनेस के लिए दिए कि मैं खुद को समझ जाऊं। मैंने खुद को समझ लिया तो दूसरे को भी समझ जाऊंगा, और यही पता लग जाएगा कि जो मैं गलतियां कर रहा हूँ दूसरा भी वही गलती कर रहा है। इसलिए दोनों ही इनकॉम्पिटेंट है, लेकिन दोनों ही जुड़ना चाहते हैं, दोनों ही निरंतर सुख चाहते हैं, है ना। तो चलिए, सबसे पहला सोर्स है हैप्पीनेस फ्रॉम सेंसेशन, संवेदना से सुख। आप खुद ही सोचिए,
क्या मैं सुखी रहने के लिए सेंसेस पे डिपेंडेंट हूँ कि नहीं हूँ? खाना पीना सोना और चुगली चुगली, इस पे पूरी की पूरी तरीके से मैं आश्रित हूँ, है ना? कि चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, 150 किलोमीटर पे गाड़ी दौड़ाएंगे तो खूब मजा आएगा। कितनी देर का मजा है? हैप्पीनेस फ्रॉम सेंसेशन। ये है तो संवेदना से सुख। ये सब संवेदनाओं का सुख है जो बॉडी के माध्यम से आएगा। अब बताइए, ये अंदर से है, ये बाहर से है? ये सोर्स सब बाहर है। जिस दिन खाना मिला सुखी, नहीं मिला दुखी, है ना? एसी बंद हो गया तो दुखी कि भैया एसी क्यों बंद हो गया, लाइट चली गई। अब ये दुख का कारण क्यों? क्योंकि मैंने अपना सुख दुख सब बाहर से जोड़ रखा है ना? सो हैप्पीनेस फ्रॉम सेंसेशन, सो इट इज आउटसाइड। बताइए, इट इज शॉर्ट टर्म, टेम्पररी और कॉन्टिन्यूअस? बट एक्चुअली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज कॉन्टिन्यूटी। बट हैप्पीनेस फ्रॉम सेंसेशन, happiness of I from sensation through body, it is short term, temporary or continuous? बताइए। इट इज शॉर्ट टर्म, टेम्परेरी। रसगुल्ला खा के कितनी देर की खुशी है? बाइक चला के कितनी देर की खुशी है? क्या आप कंटिन्यू कर सकते हैं 150 किलोमीटर की गाड़ी में पूरी जिंदगी भर गाड़ी चलाना? नहीं कर सकते। इसी तरह रसगुल्ला 4 के बाद, 5 के बाद, 6 के बाद वही रसगुल्ला आपको इंटॉलरेबल हो जाता है। You can't continue that. You can't continue consuming it. Whereas I think that it is a source of happiness. Yes, it is, but it is not happiness because it is just excitement, because it is coming from outside, and moreover, it is connected with my sensation. And whatever is connected with my sensation, it is not happiness, because happiness is related to self. और जो sensation बॉडी से आ रही है वो हैप्पीनेस नहीं है, वो केवल एक एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट की डेफिनेशन है जिसमें निरंतरता संभव नहीं है। बताइए किसमें है निरंतरता? रसगुल्ले में। 5 के बाद क्यों रुक जाते हैं फिर? दूसरी, हैप्पीनेस फ्रॉम फीलिंग फ्रॉम अदर्स लाइक ट्रस्ट, रिस्पेक्ट। दूसरा मेरा सम्मान कर दे, दूसरा मेरे पे विश्वास करने लगे, है ना, इससे मैं खुश होता हूँ। लेकिन ये भी बाहर से है ना? दूसरे की स्थिति नहीं है किसी दिन। क्या आपकी स्थिति होती है हमेशा दूसरों का सम्मान करने की, दूसरों से ढंग से बात करने की? किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो मैं परेशान हो जाता हूँ। अब जिसके साथ भी व्यवहार करता हूँ, है ना, हो सकता है गलत व्यवहार कर दूं, अब दूसरा दुखी हो गया बिना जाने पहचाने कि मेरी क्या स्थिति। इसी तरह दूसरे की स्थिति भी खराब हो सकती है किसी भी तरीके से। लेकिन आप कहेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि मेरा रिमोट 2 जगह चला गया बाहर। एक तो संवेदनाओं को मैंने रिमोट कंट्रोल दे दिया, अपनी खुशी की चाबी दे दी। इसी तरीके से दूसरों को दे दिया अपनी चाबी कि दूसरा मेरे से प्यार से बोलेगा तो मैं खुश होऊंगा। केवल अवेयरनेस है। दूसरा तब आपको देगा जब उसकी मानसिक स्थिति सही होगी, नहीं होगी तो नहीं देगा। अब आप उससे मांगते रहो। एक ऐसी चीज से मांग रहे हो जो वो देने की स्थिति में ही नहीं है। दुखी कौन होगा, वो या मैं? पहले मैं दुखी होऊंगा फिर उसको दुखी करूंगा। ये बात क्लियर हो पा रही है? केवल देखिए भी अवेयरनेस चल रही है पूरी की पूरी। देखिए हम कहाँ पे अपनी हैप्पीनेस को जोड़ रखा है ना? इसी तरीके से जब हम आगे बात करते हैं, सो फिर से पूछता हूँ, इट इज शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और कॉन्टिन्यूअस फीलिंग फ्रॉम हैप्पीनेस, फीलिंग फ्रॉम अदर्स? पिताजी ने किस दिन गलत बोल दिया, अब दुखी हो गए कि इन्होंने बोल कैसे दिया मुझे। अरे किसी वजह से परेशान होंगे वो। अब एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने उनके इंटेंशन पे डाउट कर लिया। मुझे दुख इस बात का हुआ, उन्होंने ये बोला, है ना, क्योंकि अंदर मेरे विरोध है उनके प्रति किसी बात को लेकर। मेरा दुख उनके, मेरे अंदर उनके प्रति विरोध का है ना? लेकिन जब विरोध नहीं होता हमारे अंदर तो कुछ भी, कोई दोस्त, हम दोस्त कैसे बात करते हैं आपस में, कितने कितने गलत तरीके से बात करते हैं, लेकिन हम बुरा नहीं मानते क्योंकि उस दोस्त के प्रति विरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंशन पे डाउट नहीं है ना? तो ये पता लगता है कि ये लॉन्ग टर्म तो हो सकता है पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि दूसरे की स्थिति मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसके अंदर भावों की क्या स्थिति है उस समय, है ना? तो ये बात भी क्लियर हो गई। क्या क्लियर हुई? कि इट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बट नॉट कॉन्टिन्यूअस। पर मैं तो कॉन्टिन्यूटी की मेरी एस्पिरेशन है ना? ये बात क्लियर होती है। अब हम इन दो बातों को छेड़ते हैं कि कॉन्टिन्यूटी कैसे आएगी। व्हाई इज माय हैप्पीनेस नॉट कॉन्टिन्यूअस? आई विल बी वेरी फास्ट नाउ। सी, ये हमारा स्वभाव है ग्रीन सर्कल, और ये हमारा राइट प्रायोरिटी ऑर्डर है। राइट प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? पहले रिलेशनशिप, फिर फिजिकल फैसिलिटी। अगर ये राइट प्रायोरिटी हमें क्लियर हो जाए, प्रैक्टिस तो बाद में होगी, पहले ये बात पता लग जाए, इसके प्रति मैं अवेयर हो जाऊं, इसके प्रति मैं पूरी तरीके से जागरूक हो जाऊं, अब मैं क्लियर हो जाऊंगा कि मेरा प्रायोरिटी ऑर्डर एक्चुअली क्या होना चाहिए।
अब मैं जो भी काम करने जाऊंगा सबसे पहले रिलेशनशिप को वैल्यू करूंगा, उसके बाद फिजिकल फैसिलिटी और मनी को वैल्यू करूंगा, है ना। होता क्या है, मेरा प्रायोरिटी ऑर्डर चेंज हो जाता है। प्रायोरिटी ऑर्डर देखिए, पहले क्या था, पहले एक नंबर पे सेल्फ थी, दूसरे नंबर पे बॉडी थी। अब क्या हो गया, पहले नंबर पे बॉडी आ गई, बॉडी की सेंसेस आ गई, दूसरे नंबर पे सेल्फ आ गया। एक्चुअली क्या हुआ, रॉन्ग प्रायोरिटी ऑर्डर, क्योंकि जो सेल्फ की नीड है वो कॉन्टिन्यूअस है, जिसको मैंने बैक सीट पे बैठा दिया, है ना। यहाँ पे दिक्कत शुरू हो गई सारी, and it would be serious problem because I would tend to be very greedy and materialistic. I may also, because I'm totally dependent upon food, clothing and sheltering and everything and the feeling from others. So if I don't get that, I may tend to show self-harming tendency also. I may consume drugs, I may consume liquor, I may consume anything, है ना. It may lead to further serious repercussions like depression or suicidal tendency, because I have shifted from self to body for my happiness. And the continuity of happiness is not possible through senses of body. It is very clear. इसको आप जांचेंगे तो बहुत क्लैरिटी से बात हो पाएगी. And it would result into not only unhappiness but mutual unhappiness. केवल मैं ही दुखी नहीं होऊंगा, मैं दूसरों को भी दुखी करूंगा. क्यों? Because I've started showing greediness and even what criminal tendencies. आपको क्या कैसे लगा, कैसे लगता है विकास दुबे जैसे बन जाते हैं? उसको लगता है भैया मुझे शहर का सबसे अमीर आदमी बनना है, बस पैसा कमाना है, चाहे जैसे मर्जी कमाओ. अब वो क्या करेगा, आदमी दूसरों को चीट करेगा. ट्रस्ट, इफेक्शन और ये जो रिस्पेक्ट है, इसकी धज्जियां उड़ाएगा. वो खुद भी दुखी होगा, दूसरे को भी दुखी करेगा. इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा कि अनहैप्पीनेस क्यों हुई. क्योंकि मेरे अंदर, सेल्फ के अंदर 3 क्रियाएं चलती हैं, इच्छा, विचार, आशा. यहाँ पे गड़बड़ हुई है. ये मेरी इमेजिनेशन है पूरी की पूरी. जैसे बॉडी में ब्रीदिंग, वॉकिंग, ईटिंग, डाइजेस्टिंग एक्टिविटीज हैं, इसी तरह सेल्फ में 3 एक्टिविटीज हैं, डिजायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशंस. इन डिजायर्स की वजह से इन गलत, अब यहाँ पे जो गलत डिजायर आ गई, गलत डिजायर का बेस गलत थॉट होगा और गलत एक्सपेक्टेशन उसके साथ जुड़ी होंगी. इसका मतलब क्या हो गया, माई इमेजिनेशन गोज फॉर ए टॉस. It would create all the hell because myself decide what to be done on the basis of my desire and my thoughts. है ना. क्या क्या इसका मतलब, ये जो बिलीफ, इस तरह की बिलीफ. अब एक बिलीफ देखते हैं, जैसे हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, चार्ल्स डार्विन ने किसी समय पे कह दिया था कि जो फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा. इट वाज द एक्चुअली द रूल फॉर द एनिमल ऑर्डर. ये ह्यूमन ऑर्डर के पे अप्लाई ही नहीं हो रहा. एग्जाम्पल के तौर पे, आप माँ छोटी बच्चे को देख करती है, उसकी 4 महीने का बच्चा है, किसको खाना खिलाती है, पहले खुद खाती है, बच्चे को खिलाती है. 4 महीने का हो या बच्चा 10 साल का हो या 20 साल का हो, है ना, माँ शरीर में बड़ी है उससे, वो ज्यादा फिटेस्ट है ना. बट शी टेक्स केयर ऑफ हर किड्स फर्स्ट. यहाँ पे तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट काम ही नहीं कर रहा. तो हमने कैसे मान लिया कि ह्यूमन सिविलाइजेशन पे काम करेगा. इसी तरीके से जब मैं दूसरे के साथ संबंध देख पाता हूँ, चाहे वो मेरा ब्लड रिलेटिव भी ना हो, दूसरे को खिला के मेरा मन खुश होता है. और वैसे भी जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को जो मैं बिलीफ मानता हूँ, जो मेरे गवर्न करती है मेरे डिजायर थॉट्स को, तो किस तरह का भाव आता है, जेलिसी का भाव आता है या अफेक्शन का भाव आता है आपके अंदर दूसरे के प्रति. इसी तरीके से सक्सेस इज गेटिंग अहेड ऑफ अदर्स. अब अहेड ऑफ अदर्स किस लिए, मटीरियली, केवल फिजिकल, वही बॉडी की सारी नीड्स, क्योंकि हमने केवल अपने आप को बॉडी मान के जिया. की डेफिनेशन भी क्या, जिसके पास ज्यादा पैसा, ज्यादा गाड़ी, ज्यादा बैंक बैलेंस, है ना, वो सक्सेसफुल. अब बताइए, रिलेशनशिप का भाव आएगा या ऑपोजिशन का भाव आएगा उसके लिए. इसी तरह अदर्स आर ऑब्स्टेकल ऑन द वे ऑफ माय सक्सेस, है ना. अभी बताया, एक फियरलेसनेस आएगी या फियर आएगा उस समाज में जहां पे लोग ये मानते हो कि दूसरा मेरी सक्सेस में बाधक है ना. इसी तरीके से नीड्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड. अभी हमने देखा हमारी बॉडी की नीड्स तो लिमिटेड है. ये किसने कह दिया नीड्स आर अनलिमिटेड? और आज हमें कोरोना में पता भी लग पा रहा है हमारी नीड्स कितनी लिमिटेड है ना. और जब हम ये कहते हैं नीड्स आर अनलिमिटेड, वी गो ऑन शॉपिंग, है ना, विद ऑल मैडनेस. अब बताइए, ये राइट यूटिलाइजेशन है, ये मिस यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का. And last but not the least, human is the master. The master has to conquer the rest of nature. बताइए, मैं प्रकृति का दोहन करूंगा या पोषण करूंगा?
उसके प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव रखूंगा या थैंकलेसनेस का भाव रखूंगा। ज्यादा से ज्यादा खाना, ज्यादा से ज्यादा पीना, ये मेरी जिंदगी की प्रोग्रामिंग बन जाएगी। कितनों को नुकसान करूंगा, नेचर को भी करूंगा, लोगों को भी करूंगा, क्योंकि पैसा के लिए मुझे लोगों को चीट करना पड़ेगा। अब देखिए ये सारी बिलीफ किसको किसको गवर्न कर रही है? मेरे थॉट्स को, मेरे डिजायर को, मेरी एक्सपेक्टेशंस को। और यहाँ मैं फंस जाता हूँ जाके, है ना। मैं एक स्लाइड कट कर रहा हूँ, टाइम कम है। तो क्रक्स में ये निकल के आया कि मेरी जो गलत बिलीफ है, जो मेरी सेंसरी ट्रिगर्स हैं, ग्रेटिफिकेशन की जो टेंडेंसीज हैं, it would left hand on the left hand it would create mutual unhappiness and mutual deprivation also. I will devoid this planet. That is why climate change, that is why this जो global warming, that's a resultant of this wrong belief. अब ये बिलीफ केवल 5 नहीं है, 500 बिलीफ्स हमारे अंदर डंप हुई पड़ी है, 5000 बिलीफ्स डंप हुई पड़ी है। इसी की वजह से मैं दूसरों के साथ मिस्ट्रस्ट, डिसरिस्पेक्ट, जेलसी और ऑपोजिशन के साथ जीता हूँ, है ना। ऑन द अदर हैंड, if my thoughts, if my imagination is based on holistic awareness, है ना, based on self awareness, based on the whole, the interconnectedness of the whole planet. So I tend to nourish right desires, I tend to nourish right thoughts and right expectation, and it leads to mutual happiness and mutual prosperity. And this is nothing but transformation, है ना, from animal consciousness to human consciousness. So लास्ट स्लाइड से मैं खत्म करता हूं इसको। अभी देखिए क्या है, पूरा एक व्यक्ति मानव 15 से 20 साल एजुकेशन इंस्टीट्यूट का पार्ट रहता है और उसकी पूरी जिंदगी ये 4 में निपट जाती है, हाई ग्रेड्स, कंपटीशन, इंफॉर्मेशन एक्युमुलेशन और फैट पे पैकेट्स। और निकल के क्या आता है? इनह्यूमन, अनप्रेडिक्टेबल ह्यूमन बीइंग, एक मानव का अमानवीय व्यवहार निकल के आता है, अनिश्चित आचरण निकल के आता है। और किस तरह की मानसिकता निकल के आती है? माइंडसेट ऑफ एक्युमुलेशन एंड इंटेलिजेंस विद मिनिमम लेबर, कम से कम काम करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा मैं भोग सकूं और संचय कर सकूं, है ना। इसके रिजल्टेंट क्या होंगे? पूरे ह्यूमन टू ह्यूमन डिस्कनेक्टिविटी एंड ह्यूमन टू नेचर डिस्कनेक्टिविटी, जिसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। होना क्या है? होना ये है। मिसिंग पार्ट एक था होलिस्टिक अवेयरनेस, जिसमें वैल्यू एजुकेशन आता है टॉप पे, वैल्यू एनहांसमेंट। Value enhancement is being taken care of value universal human value education. वैल्यू एजुकेशन को बेस में रखते हुए स्किल को एनहांस किया जाए तो क्या निकल के आएगा? ह्यूमन एक्सेलेंस। कंपटीशन से बाहर आ गया आदमी, दूसरे से बाहर आ गया, खुद का कंपटीशन, मेरा कंपटीशन मेरे खुद के साथ। अब इंफॉर्मेशन एक्मुलेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन एनरिचमेंट है, चूजिंग राइट करियर है, करेक्ट नीड का आइडेंटिफिकेशन है, प्रैक्टिस है, प्रिपरेशन है थ्रू कोलैबोरेशन, और प्लेइंग माय रोल of ensuring mutual happiness and management of resources. अब देखिए एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट का कितना बड़ा काम है, ह्यूमन टू ह्यूमन म्यूचुअल हैप्पीनेस को इंश्योर करना और साथ ही नेचुरल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। एक कितना बड़ा मौका मिल रहा है आपको, तो दोनों मौके मिल रहे हैं क्या करने के? होलिस्टिक अवेयरनेस कहता है कि ह्यूमन का गोल क्या है? म्यूचुअल हैप्पीनेस एंड म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी, है ना। कैसे? राइट स्किल से और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को यूज करके। ओनली देन mutual happiness and mutual prosperity can be ensured, and the resultant is this: एक ह्यूमन निकल के आएगा, एक इंसान निकल के आएगा विद डेफिनेट कंडक्ट के साथ, डेफिनेट बिहेवियर के साथ। इट विल लीड टू व्हाट? फियरलेसनेस एंड ट्रस्ट इन द सोसाइटी एंड ए ब्यूटिफुल सोसाइटी। and the nature also will be letting will create eco-friendly way of living by reducing, reusing, recycling, protection, enrichment and right utilization. ये निकल के आता है फाइनली, है ना। I'll end up with this एक small video, right? I'm sorry, I'm taking more time, two more minutes, so it will conclude the whole thing. प्यारे मुन्ना, इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। ये बहुत ही सुंदर, अनोखी और प्यारी जगह है और तुम्हें इसे और भी सुंदर और भी प्यारी बनाने के लिए भेजा गया है। भेजा किसने? ये आज तक कोई नहीं जान पाया,
और शायद जान के कुछ हासिल भी नहीं होगा। इसलिए ऐसे सवालों पर अपना समय बर्बाद मत करना। हम सबके पास एक सीमित समय होता है और जितना भी हो कम ही होता है। इस दुनिया में इतना कुछ है देखने को, जानने को, महसूस करने को कि तुम्हारे पास थोड़ा भी वक्त नहीं है बर्बाद करने को। संभावनाएं असीम है, तुम कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इस दुनिया को बदल सकते हो। हर दिन कुछ नया करना, कुछ नया सीखना, कुछ नया समझना। और अगर कभी किसी काम को लेकर मन में दुविधा हो तो याद रखना, ना करके पछताने से कहीं बेहतर है करके पछताना। क्योंकि कोई काम करके अगर कुछ और ना भी मिला तो तजुर्बा मिलेगा और वो बहुत ही कीमती होता है। हर चीज का तजुर्बा करना, लेकिन किसी भी चीज की आदत मत डालना। तजुर्बे तुम्हें सही और गलत में फर्क करना सिखाएंगे, गलतियां करने से बचाएंगे, पर गलतियां करने से डरना मत। गलतियां वही करते हैं जो कुछ करते हैं। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना, उन्हें उसकी गलतियों को माफ करना, उन्हें उसे सुनने का मौका देना। सबको वही जितना हो प्यार करना। इस दुनिया में प्यार की बहुत कमी है बेटा, और सबको इसकी बहुत जरूरत है। तुम्हें भी होगी। मांगने में जान मत, दिखाने में चिकना मत। जिंदगी बहुत छोटी है, शर्म के लिए, संकोच के लिए आए ना आए, जी खोल कर ना, गला फाड़ के गाना, मन के हंसना और जोर से रोना, जैसे तुम अभी रो रहे थे फोन पर। बस शीश पर जिस दिन अंदर से ये बचपना गया, ये मासूमियत गई, उस दिन समझो जिंदगी गई। भविष्य के बारे में सोच, चिंता कर, बीते दिनों को याद करना, पर उनमें खो मत जाना। जिंदगी में कुछ अच्छे दिन, कुछ बुरे। अच्छे दिनों में घमंड न करना और बुरे दिनों में हताश न होना। सफलता का सारा श्रेय खुद को मत देना और असफलता का जिम्मा दूसरों पे मत थोपना। बेटा बस आगे बढ़ते जाना, खुशियां बांटते जाना, और ये जरूर याद रखना कि तुम्हें यहाँ सिर्फ एक ही काम से मिलना है कि तुम इस दुनिया को और भी सुंदर और भी प्यारी जगह बना सको। ढेरों आशीर्वाद के साथ तुम्हारा दादा। Thank you so much. So what do you think is important for happiness? Maybe panel, I can't see the messages now on the panels. I'm audible and I'm online. So बताएं, what do you think is important for happiness? So, right understanding first, healthy relationship later, and then physical infrastructure facility. तो पहला में अब order क्या आएगा? 3, 1, 2. We have very sorry to interrupt, sir. We have lack of time, so yeah, we done would with. require request to please compile. I'm done with this. Just let me. How to. And we can also see a lot of comments are coming in the chat box. Students could connect their understanding and they've enjoyed it. मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इतनी गायब हो गया सिस्टम से कैसे? I don't know how to. Just a second. Which one? हाँ. Yeah, I'm back. बताएं. Yeah. मैं मैसेज देखता हूँ, मैसेज आएंगे. मैंने कोशिश की है देखिए 1-1.5-2 घंटे में पूरी बात को रखने की,
लोगों के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, है ना, तो कम से कम मैंने टाइम में एक बात रखने की कोशिश की है, जस्ट सो दैट पीपल कैन सेल्फ एक्सप्लोर, क्योंकि सेल्फ एक्सप्लोरेशन से ना हम बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब ढूंढ सकते हैं। केवल अगर मैं कुछ क्वेश्चंस के जवाब दे देता तो केवल वो 4 क्वेश्चन ही कवर हो पाते, अगर जब आप अंदर इंट्रोस्पेक्शन मोड में जब जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब हमारे खुद के पास हैं। एक नेचुरल एक्सेप्टेंस की, नेचुरल जो एक फैकल्टी की मैंने बात की, इट्स ए वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी पावरफुल फैकल्टी वी आर एंडोर्ड विद, जिसको हम रेफर कर सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट द आंसर वी कैन डिसाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि जो मुझे सहज स्वीकार है, वही सहज स्वीकार मेरा, कि वो तो सहज स्वीकार सभी को वही है, but because of lot of wrong beliefs our competencies are different because of wrong beliefs which have been dumped into us, and that is why we tend to split apart, otherwise everybody wants to connect together, है ना। तो मुख्य काम क्या है, खुद को जान के उन बिलीफ सिस्टम को हटाना जो हमारे अंदर वायरस की तरह अंदर किसी ने डाल रखे हैं, या हमने वी हैव अलाउड देम टू लेट इन, है ना, which are governing our thoughts, which are governing our desires, which are governing our expectations। तो बहुत सारी हमारे expectations wrong expectations है, बहुत सारी desire wrong desires है, जो हमारे पूरे मानस को, पूरे सेल्फ को इन्फेक्टेड रखती है। तो जब ये बात समझ में आती है तो पता लगता है कि कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है सुख के लिए, सुख तो केवल to find our own self। Exactly. So yeah, we witnessed how gradually you took all of us into that section, and very smoothly that the process that you adopted was very smooth, not only for the student but faculty members as well. And yes, we are glad to share that we also have this subject human values in our course curriculum, and very soon students would be studying this, so that would be a very good platform at that particular time, as they have already gone through this basics of this area. So wonderful session once again, and you have very you have made things so easy to students. You just came to their level and tried to make them understand each and every aspect of this topic. So we would extend once again our thankfulness to you for sparing your valuable time with us and sharing such a wonderful PPT and session, delivering such a wonderful session with all of us. So on behalf of GL Bajaj मैं Institute दो बातें कहना चाहूंगा, प्लीज लेट मी इंटरप्ट। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बच्चे ये सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं ना, ये सब्जेक्ट है ही नहीं, ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस। और एक बार अगर ये बच्चे ने पकड़ लिया ना सब्जेक्ट, मैं बता रहा हूँ, इट्स सच ए ब्यूटीफुल लाइफ, एंड आई मीन we can ensure the continuity of our happiness, and unless and until we are unhappy or not happy, we cannot bring happiness outside, है ना। जो मेरा जीना है वो केवल इस बात का एक इंडिकेटर है कि मैं बहुत खुश हूँ। अब जो भी मैं काम करने जाऊंगा, वो जब सुखपूर्वक करने जाऊंगा तो वो तो वैभव है, फैला हुआ है, मतलब इट्स सच ए ब्यूटीफुल लाइफ। बट पॉइंट इज, इफ आई हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स क्लियरली और नॉट, तो अभी केवल 2 घंटे में तो बिलीव मी अपना जी, आई जस्ट टच्ड एंड गो, यू नो। We could see that. Yes, you wanted to explore more and wanted students to get into that more. Yeah. But yes, we have paucity of time, but still this was a wonderful thing. I mean, they are into very first trimester, and getting them into this. We will have sessions again, and once the things will be normal and new normal will into practice, then we will have a full session on this. Okay, so till then, bye to everybody. Thank you, Pankaj ji, for your sparing your valuable time and giving a enriching experience to all of us. So thank you everybody, all the participants. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Namaskar.